here. Just a second. Some of you are also joining. Okay, and let's start the session. So I'm sharing my screen. Let me know once it is visible to you also. This is our previous session. Mm, Let me make separate. So is my screen visible to you all? Yes, Bhaiya, it is. Thanks, Rudraj. Hmm. Someone had pinged me regarding the session, so I'm sharing the links and all. Let's start the session. We will also record this session. If anyone wants in future, he or she can DM me regarding this, and we will share them. Right. So, what's the agenda for today? Agenda of session. Right. So we will be discussing about GitHub, GitLab, and inside this there are many things like branch conflicts, you know, branch merging. There are a lot of things. I will cover everything in very detail. Branch conflicts, branch merging, right? There are many things. And lastly, we will know about GSSOC, right? So, like first of all, why this session on GitHub? Because currently GSSOC is going on, right? Most of you, I don't think you are aware, but GSSOC is one of the like big events. I can say it is one of the big events in which many, almost thousands, almost lakhs of students and colleges participate, right, every year, and it really adds value to your resume if you are participating in this and you got selected. It reads it had too much value in your resume because you are going to contribute in some real world projects, and there are a lot of mentors there to guide you. So this session is regarding to aware you about GSOC. So this year, if you are participating as a contributor, like many of you are in second year or third year, right? Right. So in this year, if you are participating as a contributor, then in future you can also participate as a mentor or admin also, right? So I will cover everything about GSOC, how we need to participate, how we can participate. Like some of the students from our previous session, like last Sunday also we had done the same session, GitHub, GitLab, right? But we didn't able to cover this branch conflicts and everything.
So from today also we will cover everything in very detail. We will also cover branch conflicts, branch merging type of things. And those who had attended na last session, some of them got selected in GeoSoc also, right? So this is a one of the like best events you can participate if you are in second year or third year, right? So like there is no prerequisite for this. You just only need to know how to do those. Also you can able to participate and you can able to make yourself highlighted for this event, right? So that's coming on the topics. So it, yeah, anyone having any doubts and anything you can ask, feel free to ask anything, like any doubt you are facing, just feel free to raise your hand or you can directly unmute yourself and ask me, right? Okay, Bhaiya, thank you. Yes. GitHub. Let's understand these two terms. Like I think most of you have heard about this GitHub. Like if somebody didn't hear, he or she can tell me, right? All of you have heard about this term GitHub, right? So देखो GitHub basically क्या होता है मतलब, and Git भी तुमने सुना होगा. In fact you are using VS Code ना, then in the bottom corner, let me show you my whole screen. Let me present my whole screen to you so that I can show you everything about. So दिस इज माई वी एस कोड, राइट? सो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या बताता है बेसिकली, ये मेरा गिट से कनेक्टेड है. बेसिकली यहाँ पे देखो तुमको गिट दिखाएगा, विम्पी गिट. सो विम्पी मेरा रेपोजिटरी है, गिट ये शो करता है कि हम गिट से कनेक्टेड है, राइट? सो गिट से कनेक्टेड है, बट हाउ वी कैन, लाइक गिट होता क्या है, बट गिट से कनेक्टेड है मतलब ये बस इसलिए बताया कि तुम्हें पता रहे कि हाँ हमारे VS कोड में भी एक गिट वाला पोर्शन ऑलरेडी होता है जो हमारे कोड को सिंक करता रहता है, राइट? तो मोस्ट ऑफ यू आई डोंट थिंक हैड नोटिस दिस थिंग, राइट? सो बेसिकली गिटहब को पहले अच्छे से समझते हैं, देन वी विल डू वन वन राउंड ऑफ प्रैक्टिकल आल्सो हियर. Like I can show you complete demo like how the flow goes, right? So GitHub क्या होता है तुम्हारा? GitHub is just a website. Website मतलब क्या है भैया? Website means just a cloud पे hosted एक प्लेटफॉर्म है. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा google.com है ना, गूगल सर्च करते हो ना, गूगल पे कोई भी वेबसाइट देखते हो, इट इज जस्ट लाइक दैट. गिटहब एक सिंपल एक वेबसाइट है, नथिंग एल्स. अब इस वेबसाइट पे क्या क्या मिलता है भैया, इस पे हम बहुत सारे डेवलपर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनके कोड, ओपन सोर्स जो कोड होता है ना, ओपन सोर्स कोड्स को देख सकते हैं, ओपन सोर्स कोड्स को देख सकते हैं. एंड और क्या देख सकते हैं भैया, इस पे तुम ओपन सोर्स कोड को देख सकते हो एंड तुम कोलैबोरेट कर सकते हो. कोलैबोरेशन से क्या मतलब है आपका? कोलैबोरेशन से मेरा ये मतलब है, फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनीज अपना जो कोड है ना उनका ओपन सोर्स होता है, तो यहाँ जाके तुम उन कोड्स में कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो. अगर उन्हें अच्छा लगेगा तुम्हारा कोड, अपने कोड बेस में मर्ज करेंगे. इनफैक्ट तुम बहुत सारे डेवलपर्स जो ऑलरेडी उनकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे रेपोस होते हैं, उसमें तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो. सो कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे? यूजिंग गिट. बट वो सारी चीजें देख कहाँ पाएंगे? यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म. मतलब बस गिटहब एक तुम्हारा यूआई इंटरफेस प्रोवाइड करता है. यूआई इंटरफेस मतलब एक फ्रंट एंड प्रोवाइड करता है जहां पे तुम सारी चीजें देख सकते हो. बट मैनेज कैसे करोगे? यूजिंग गिट. गिट को भी अभी हम बहुत डिटेल में देखेंगे वन बाय वन. बट गिटहब के लिए अभी ऐसा समझो कि इट इज जस्ट अ वेबसाइट जो क्लाउड पे होस्टेड है, या यू कैन से सर्वर पे होस्टेड है ना, सर्वर होस्टेड वेबसाइट, राइट? एंड तुमको यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलेंगी, यहाँ पे तुम बहुत सारे ओपन सोर्स कोड्स को देख सकते हो. कोलैबोरेशन के लिए क्या क्या के डेवलपर ने क्या चीज ओपन करके रखा है, किसके क्या कोड्स हैं, ये अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकल में. मैं गिटहब की वेबसाइट पे ले चलूंगा, तुम्हें पूरा डेमो कराऊंगा. तो कौन सी डेवलपर ने क्या क्या चीजें होस्ट कर रखी है, उन्होंने क्या कोड लिखा है, वो सब हम देख सकते हैं. जस्ट वी कैन एबल टू व्यू, राइट? हम सिर्फ व्यू कर सकते हैं. साथ में हम जब भी हम कोड लिखते हैं ना एंड प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उसको डिप्लॉयमेंट तक ले जाना होता है ना, राइट? डिप्लॉय करते हैं यूजिंग गिट. यूजिंग मतलब तुम्हारा जो गिटहब है ना,
गिटहब पे तुम पहले डिप्लॉय करोगे एंड देन यहाँ से किसी क्लाउड पे या किसी सर्वर पे तुम डिप्लॉय कर रहे होते हो ना, तो बिना इस गिटहब पे तुम्हारा कोड आए कभी डिप्लॉय हो ही नहीं सकता, राइट। सो तुम सबसे पहले गिटहब पे ही डिप्लॉय करते हो, राइट। सो गिटहब इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म वेयर लॉट ऑफ डेवलपर्स कोलैबोरेट फॉर देयर कोड्स, राइट। सो ये अभी हम देखेंगे और डिटेल में गिटहब को, बट गिटहब का अभी सिंपल फंडा है कि तुम समझो कि एक वेबसाइट है जहाँ पे ये सब चीज़ें मिलती हैं, फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल तुम जोमेटो सर्च करते हो ना, तो जोमेटो की वेबसाइट पे क्या मिलता है, खाने की चीज़ें बहुत सारी मिलती है ना, रेस्टोरेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। सिमिलरली लाइक दिस, कि अपना गिटहब भी ऐसा है कि यहाँ पे एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कोड्स के बारे में तुम्हें पता चलेगा, राइट। सो Ayush has also joined little bit late, है ना। सो गिट, अब हम समझते हैं गिट क्या होता है। तो गिट इज समथिंग डिफरेंट, मतलब ये मोस्ट ऑफ द, इवन तुम्हारे सीनियर्स से भी पूछोगे ना जो फोर्थ ईयर में है, या इनफैक्ट अभी टीसीएस में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, है ना। टीसीएस में बहुत सारे एम्प्लॉयज को पूछोगे कि गिट और गिटहब में क्या डिफरेंस है, वो इस चीज को बाइफरकेट ही नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उन्होंने कभी इसको ऑब्जर्व ही नहीं करा होता है बहुत डीपली। तो गिट क्या है तुम्हारा, गिट है तुम्हारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इससे क्या मतलब है भैया आपका वर्जन कंट्रोल सिस्टम से। सो वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है पहले समझो। ये क्या होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम, क्या होता है, इस वर्ड को बहुत अच्छे से समझना। तुम कोड लिखते हो, कोई भी एप्लीकेशन बनता है तो वो स्टेप बाय स्टेप बनता है ना। पहले कोई भी प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल जोमेटो भी बना होगा, तो पहले बहुत मिनिमल वायबल प्रोडक्ट्स के साथ, मिनिमल वायबल फीचर्स के साथ वो उनकी वेबसाइट लॉन्च हुई होगी, राइट। फिर कुछ दिन जब मिनिमल एमवीपी लॉन्च हुआ होगा इनका, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, तो फिर लेट्स से 100 लोग यूज कर रहे हैं, राइट। फिर लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया कि हाँ यार ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, अपने को खाने पीने की चीजें मिलती हैं। सो कुछ दिन बाद इस प्लेटफॉर्म पे लोड बढ़ा होगा, तो इनके डेवलपर्स ने क्या किया होगा, लोड को मैनेज करने के लिए कुछ कुछ कोड ऐड किया होगा, कुछ कुछ ऑप्टिमाइजेशन लगाया होगा, कुछ कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए होंगे ताकि और कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाए। तो इन्होंने वर्जन 2 लॉन्च किया अपनी ही वेबसाइट का। ये इनका वर्जन 1 था, ये वर्जन 2 लिया, है ना। फिर कुछ दिन बाद और लोड बढ़ा, और मतलब नंबर ऑफ कस्टमर बढ़े, और एड ऑन फीचर्स हुए, फीचर्स एड ऑन, फॉर एग्जांपल इन्होंने और सारे रेस्टोरेंट्स को ऐड किया, तो फिर वर्जन 3 लॉन्च हुआ। ऐसे कोई भी कंपनी ना, उनका कोड ऐसे ही अपडेट हो रहा होता है कुछ ना कुछ, जैसे तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना, सॉफ्टवेयर अपडेट इज द सेम थिंग, कि पहले V1 पे था, फिर हमने V2 पे हम ले गए, कुछ मतलब एड ऑन इस पे किया, कुछ फीचर्स ऐड किए, राइट। फिर तुमने V3 इसका लॉन्च किया, राइट। सो जब तुम डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स को बिल्ड कर रहे हो, तो ये डिफरेंट डिफरेंट वर्जन, फॉर एग्जाम्पल पहले तुम्हारा ये कोड डिप्लॉयड था क्लाउड पे, तो क्लाउड पे कैसे गया होगा, पहले भैया हमने गिट से गिटहब पे भेजा होगा, एंड गिटहब से हमारे क्लाउड पे गया होगा, राइट। क्लाउड से मेरा मतलब है जो तुम्हारे वो ये वाले प्लेटफॉर्म होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल नेटलीफाई, है ना, रेंडर, मतलब जहाँ पे तुम्हारा होस्टिंग होती है, जहाँ पे तुम होस्ट करते हो अपना वेबसाइट, होस्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल कि तुम जैसे जो भी, जैसे अब तुम हमारा कोड मेंटीज डॉट कॉम सर्च करोगे ना, तो डॉट कॉम कहाँ से कैसे होस्टेड है, वो वन ऑफ द रेंडर पे जैसे हमारा डिप्लॉयड है, रेंडर पे हमारा बैकएंड डिप्लॉयड है, ऐसा। तो ये क्लाउड होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में डिटेल में किसी सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे, बट अभी तो हम गिटहब को समझते हैं बहुत डिटेल में। यस एनीवन। तो डिप्लॉय क्या है? हाँ, डिप्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि हमारा कोड, हमारे अभी हमारा कोड स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारे लोकल कंप्यूटर में है, राइट। बट हमें इसको ऐसी जगह पे ले जाना है कि कल को कोई और लेट से कोई और codemantis.com सर्च करता है। कोडमेंटिस की वेबसाइट कैसे बनी होगी, पहले हमने बेसिक HTML CSS जैसा कुछ लिखा होगा, पेज बनाया होगा, फिर हमारे लोकल में चलता होगा हमारे कंप्यूटर में, बट हम चाहते हैं कोई भी आए और हमारे codemantis.com को सर्च करे, है ना, तो उसको हमारी पूरी वेबसाइट दिखे, जो मैंने अपने लैपटॉप में बनाया था वो पूरी दुनिया को दिखे, पूरे ग्लोबली, चाहे कोई इंडिया में हो, यूएसए में हो, यूके में हो, इससे मतलब नहीं है, बट उसको दिखे, किसी भी कोने में हो बट दिखे। तो हम लोग अपने कोड को पूरा एक जगह क्लाउड पे रखते हैं कि अब हमारा, पहले हमारे कंप्यूटर पे रन हो रहा था हमारा कोड, अब इन फ्यूचर जाके वो क्लाउड पे रन होगा, एंड क्लाउड पे रन होगा तो इसको सब पूरी दुनिया एक्सेस कर सकती है। तो ये जो प्रोसेस है ना, इस पूरे को बोलते हैं डिप्लॉयमेंट, कि हमने अपने कोड को अपने लोकल से क्लाउड पे शिफ्ट कर दिया, मतलब डिप्लॉय कर दिया, राइट। तो इसका मतलब होता है डिप्लॉयमेंट, राइट। तो यस, लेकिन अभी हम, हाँ, अभी हम गिट को समझते हैं।
तो ये जो तुम डिफरेंट वर्जन्स बना रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल तुमने ये वाला पहले डिप्लॉय किया था, कुछ टाइम बाद तुम्हें जरूरत पड़ी कि भैया और फीचर्स ऐड करने हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, मजा आ रहा है, मतलब अपना बिजनेस बढ़िया सेट हो गया है, तो फिर तुमने वर्जन 2 लॉन्च किया, और कस्टमर आए, तुमने और अच्छा फीचर लॉन्च किया। तो ये कोई भी कंपनी ऐसे ही ग्रो करती है, डिफरेंट डिफरेंट। तुमने मतलब नोटिस भी किया होगा कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, तुम्हारा फोन अपडेट होता है, कोई भी वेबसाइट जो तुम पहले यूज करते थे अभी यूज कर रहे होगे, तो पहले और अभी के यूज में काफी डिफरेंस आ रहा होगा, राइट। तो वो डिफरेंस कैसे आ रहा होता है, बिकॉज ऑफ दिस वर्जन हम लोग और बेटर बना रहे होते हैं, हम लोग और चीजें अच्छी अचीव कर रहे होते हैं, राइट। सो अब हम डिफरेंट वर्जन्स तो बना रहे हैं, बट इनको कंट्रोल, हमने ये बनाया तो हमने कुछ कोड, फॉर एग्जांपल हमने कुछ कोड लिखा था, ये कोड गया, तो इसी में फॉर एग्जांपल हमने मॉडिफाई किया कुछ कुछ लाइंस, वो हमारा वर्जन 2 में जाना है। तो ये जो वर्जन में हम डिफरेंट डिफरेंट कोड्स को लिख रहे हैं ना, इनको कंट्रोल कैसे करते हैं, यूजिंग गिट। तो गिट एक ऐसा टूल है जो तुम्हारे लोकल में रहता है, जैसे ये तो तुम्हारा होस्टेड है क्लाउड पे, लेकिन गिट हमेशा तुम्हारे, गिट गिट हमेशा क्या होता है, तुम्हारे लोकल में रहता है। लोकल आई मीन कि तुम्हारे, देखो जो मेरा VS कोड है ना, ये तो मेरा लोकल है, मेरे लोकल में देखो गिट है यहाँ पे, करेक्ट। सो गिट जस्ट वर्जन कंट्रोल, तुम डिफरेंट वर्जन्स को लिखते हो ना, उनको कंट्रोल करेगा, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, राइट। सो गिट, यूजिंग गिट हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स को लिखेंगे एंड उसको हम गिटहब पे भेजेंगे, राइट। ये समझ में आया, राइट। अभी देखते हैं कि गिट में और क्या क्या कर सकते हैं। तो जो गिट एक बहुत अमेजिंग सेशन है, मतलब बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म, मतलब ऐसा टूल है, लेट्स से कि ये टूल है ना। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपना डिफरेंट वर्जन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हम लोग जो पहले चेंजेस, फॉर एग्जांपल हमने, एक सेकंड बता रहा हूँ, ट्रैक चेंजेस, हम ट्रैक चेंजेस से क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल जो हमने वर्जन 1 में कुछ चेंजेस किए थे, है ना, जब हमने वर्जन 1 बनाया था, अब हम वर्जन 2 बना रहे हैं लेट्स से, तो जब हम वर्जन 2 बना रहे हैं तो हमने कुछ फीचर्स लॉन्च किया, बट कोई फीचर फॉर एग्जांपल नहीं चला, कोड वहां पे फट गया, है ना, कोई फीचर ब्रेक कर गई। तो हम ऐसा थोड़ी ना चाहते हैं कि हम जब तक ये फिक्स नहीं हो जाता तब तक हमारे क्लाउड पे एरर बना रहे, तो ऐसे तो सर्विसेज डाउन हो जाएंगी, एक दिन 2 दिन के लिए, क्या पता 2 दिन लग जाए फिक्स करने में। तो हम, अगर हम यहाँ पे गए, कुछ प्रॉब्लम आई, तो हम पीछे भी जा सकते हैं, ट्रैक, अपने चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं, कुछ मतलब ये इस बीच में हम देखेंगे ना, ट्रैक करेंगे कि हमने क्या क्या चेंज किया तो वर्जन 2 बनाया, तो उन चीजों को ट्रैक करके हम वापस पिछले पे भी आ सकते हैं। तो यूजिंग गिट हम लोग अभी, ये हम लोग पूरा डेमो में देखेंगे कि हम चेंजेस कैसे ट्रैक करते हैं, कैसे कैसे डिफरेंट वर्जन्स को कंट्रोल करते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। अभी आई होप कि तुम थोड़ा बहुत अज्यूम कर पा रहे होगे कि हाँ, ट्रैक चेंजेस ट्रैक करने का क्या मतलब है मेरा। तो जो तुम जो भी कोड में चेंजेस कर रहे हो ना वर्जन 1 से 2, तो वो जो भी चेंजेस होंगे वो यहाँ पे तुम व्यू कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, राइट। जो भी कोड में तुम चेंज कर रहे हो, पहले लिखा था अब, तो वो तो तुम देख सकते हो, राइट। एंड इसी से मैं बोल रहा हूँ, हिस्ट्री का बैकअप भी रखता है ये। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा वर्जन 1 का जो भी था ना, उसका बैकअप रखता है, तुम वापस से वो पीछे जाके वो चेंजेस देख सकते हो। हिस्ट्री के बैकअप के मतलब ऐसा समझो, जो पुराने कोड थे ना उनको एज अ स्नैपशॉट रखता है ये। मतलब तुम्हारा जो वर्जन 1 था उसकी एक फोटो लेके इसने रख लिया, ताकि कल को तुम वर्जन 2 पे जाओ, तुमको अच्छा ना लगा तो फिर तुम वापस रोल बैक करके वर्जन 1 पे भी आ सकते हो, रोल बैक भी पॉसिबल है, राइट। तो ये हिस्ट्री का बैकअप रखता है, स्नैपशॉट्स करके रखता है, राइट। एंड जो सबसे मेन यूज केस है गिट का, कि ये टीम डेवलपमेंट, टीम डेव को फोकस करता है। टीम डेव से क्या मतलब है भैया, फॉर एग्जांपल तुम किसी कंपनी में हो, राइट, तुम किसी कंपनी में हो, है ना, तुमने, तुम्हारे पास एक प्रोजेक्ट आता है, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोजेक्ट, लेट्स से कोई ऐसा आता है कि तुम इंस्टाग्राम बनाओ, राइट, तुम्हारे तुम्हारी टीम जो है उसके पास इंस्टा बनाने को आता है, राइट। एक सेकेंड तो हाइड करता हूँ। हाँ, लेट से तुमको इंस्टा बनाने को आता है, तो तुम्हारे जब इंस्टा बनाने को आएगा तो तुमको ऐसा थोड़ी ना बोला जाएगा कि भाई सारा का सारा काम तू ही कर, तुम्हारी टीम में फिर बाकी लोग क्या करेंगे, तो बाकी लोग भी तो हैं, बैक एंड टीम होगी, कुछ फ्रंट एंड टीम भी होगी, फ्रंट एंड डेवलपर्स की टीम, है ना, कुछ और फॉर एग्जाम्पल कुछ डेटा साइंस वाली टीम होगी, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टीम्स होंगी, है ना। तो सारा काम तुमको थोड़ी ना मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल तुमने बोला, इसने बोला, तुम्हारा जो मैनेजर है उसने बोला कि भाई तुम लो, तुम इसका प्रोफाइल पेज बना दो, है ना,
दूसरे बंदे को दिया कि भाई तुम लैंडिंग पेज बना दो इसको, इसका मतलब इसका लैंडिंग पेज बना के लाओ, इसको बोला कि तुम इसका रिकमेंडेशन सिस्टम वाला कोड करके लाओ, है ना। और चौथे बंदे को भी कुछ फीचर दे दिया, लेट्स से फीचर एक्स वाई, है ना। तो अभी टीम में डिफरेंट डिफरेंट लोगन काम कर रहे हैं, है ना। फिर इसने चेंजेस करके एक ब्रांच में भेज दिया, है ना, एक मतलब एक जगह भेजा, फिर इसने वो चेंजेस लिए अपने में, एंड वहां से एक और जगह अपने अपने लोकल में लिया। ये अभी मैं पूरा समझाऊंगा कैसे लोकल में आता है। इसने ये चेंजेस अपने लोकल कंप्यूटर में लिया एंड उसमें अपना लैंडिंग पेज का कोड ऐड किया एंड वापस से भेज दिया। तो इन दोनों का डेवलपमेंट एक साथ हुआ, इन दोनों ने अपना अपना फीचर पुश किया, है ना। ऐसे ही फिर तीसरा बंदा भी, जो भी इन लोगों ने यहाँ पे जो अपना कोड भेजा है, वो कोड पहले अपने अंदर लेगा, फिर इनको भेजेगा अपने चेंजेस ऐड करके। तो ये बहुत सारे टीम मेंबर्स एक साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। ऐसे ही होता है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जीएस सॉक में भी तुम्हारा ऐसे ही होगा। मतलब जीएस सॉक में भी ना, तुम जिस प्रोजेक्ट में सेलेक्टेड हो ना, फॉर एग्जाम्पल तुम किसी एक्स प्रोजेक्ट में सेलेक्ट होते हो, तो उस एक्स प्रोजेक्ट में बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स होंगे एंड फॉर एग्जांपल डिफरेंट आइडियाज भी होंगे लोगों के। तो वो फॉर एग्जांपल टीम ए या किसी मेंबर ए ने, लेट्स से मेंबर ए ने कुछ फीचर्स भेजे हैं, तो जो तुम्हारा मैनेजर होगा या टीम एडमिन होगा, उसने देखा और तुम्हारा कोड उसको अच्छा लगा, उसने मर्ज कर लिया यहाँ पे। फिर जब दूसरा बंदा होगा या मेंबर टू होगा, ये भी कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, तो मेंबर टू भी क्या करेगा, जो भी कोड यहाँ पे आया अपना आइडिया लेके, वो भी इसमें मर्ज कराएगा। तो एक साथ एक ही कोड बेस पे, मतलब यहाँ पे तो इंस्टाग्राम ही तो कोड बेस था अपना, एक ही प्लेटफॉर्म था ना जहाँ पे अपने को एक ही चीज, अपना सिंगल आइडिया था ना। एक सिंगल आइडिया पे मल्टीपल डेवलपर्स काम कर सकते हैं, इनफैक्ट मल्टीपल टीम्स भी काम करती हैं इंडस्ट्री लेवल पे, राइट। सो ये टीम डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। एंड वन ऑफ द, मतलब अभी अक्टूबर में तुम्हारा एक हैक्टोबर फेस्ट होता है, ये भी बहुत अच्छा इवेंट है, मतलब ये तो बहुत बहुत अच्छा इवेंट है ना। हैक्टोबर फेस्ट में भी तुम देखोगे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन को, है ना। तो इसमें भी क्या हो रहा होता है कि तुमको बोला जाता है कि तुम 4 पीआर करके दो। पीआर क्या होता है, अभी ये पीआर अभी पुल रिक्वेस्ट होता है बेसिकली, अभी मैं तुमको समझाऊंगा कि पीआर कैसे रेज करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट ब्रांचेस बनती हैं, एक एक ब्रांच पे डेवलपर्स अपना अपना कोड भेजते हैं, फिर एक जगह मर्ज होके चला जाता है। फिर जिन जिन ने कंट्रीब्यूट किया होता है उनके लिए बहुत सारी चीज़ें अक्टूबर फेस्ट में मिलती हैं। तो ये भी एक अक्टूबर मंथ पूरा अपना सेलिब्रेशन होता है, अक्टूबर फेस्ट सेलिब्रेशन, ओपन सोर्स सेलिब्रेशन। तो ये भी मतलब तुम लोग पार्ट ले सकते हो, मतलब ये तुम्हारे मतलब तुम्हारे स्किल्स को भी बूस्ट तो करेगा, ये तुम्हारा ग्लोबल कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल जीएस सॉक में भी तुम्हारे बहुत अच्छे अच्छे कनेक्शन बिल्ड होंगे, तो ऐसे इवेंट्स में तुम्हें पार्ट लेना चाहिए। एंड इन सब के लिए गेटअप बहुत 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 जरूरी है, राइट। इस सेशन के बाद भी अगर कोई चीज़ तुम्हें नहीं आती होगी तो यू कैन पिंग मी, है ना, आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू, है ना। मतलब ट्राई करना एक बार, मतलब प्रैक्टिकली करने का, ऑल्दो मैं एक बार डेमो तो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। एंड एक और पॉइंट आता है गिट में, गिट क्यों डिफरेंट है गिटहब से, कि गिट में क्या होता है ना, ये पूरा CLI बेस्ड है। CLI का क्या मतलब है भैया, CLI का मतलब है कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन। फॉर एग्जांपल मैं अपना दिया हूँ, तो ये मैं पूरा टर्मिनल पे अपने चीज़ें रख सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे कमांड्स रन किए हुए हैं ऑलरेडी, जिसे मैंने ऐड किया है यहाँ पे। मैंने गिट स्टैश किया, गिट स्टैश अप्लाई किया, ऐसे गिट तुम्हारे जो भी गिट से स्टार्ट होता है। अभी मैं कमांड्स की एक शीट भी शेयर करूंगा जो ऑफिशियल गिटहब के डॉक्यूमेंटेशन से बनी है। मैंने गिट चेकआउट किया मास्टर पे, तो ऐसे बहुत बहुत ये तो पूरा तुम्हारा कमांड लाइन पे चलता है। यहाँ पे कुछ यूआई नहीं होता है, कुछ इंटरफेस या कुछ ऐसा फ्रंट एंड वगैरह नहीं दिखता। फ्रंट एंड मीन्स मतलब कलरफुल पेजेस वगैरह नहीं दिखते हैं। तुम पूरा अपने टर्मिनल में VS कोड के या जो भी टर्मिनल में CMD पे तुम अपना कमांड लाइन पे कमांड्स इसके रन कर रहे होगे, राइट। इसके कमांड्स बहुत बेसिक वाले, फंडामेंटली तो हम आज ही सीख जाएंगे। कुछ कुछ होंगे उसके लिए मैं तुमको शीट प्रोवाइड कर दूंगा जो थोड़ा कम यूज में होते हैं, बट थोड़ा एडवांस कमांड्स होते हैं, वो तुम उसके लिए तुमको डॉक्यूमेंटेशन शेयर मैं बनाया हूँ उसको शेयर कर दूंगा, राइट। वो ऑफिशियल गिटहब की डॉक्यूमेंटेशन है बेसिकली। तो ये CLI बेस्ड है, कमांड लाइन बेस्ड। बट भैया गिटहब क्या था, गिटहब वेब बेस्ड था ना, वेब, ये वेब पे अवेलेबल है ना। गिटहब तुम्हारा, गिटहब कहाँ गया ये, तो गिटहब तुम्हारा वेब बेस्ड था, यस, वेब वेबसाइट पे था ना, तो ये वेब बेस्ड है, राइट, करेक्ट। तो तुम्हारा ये CLI बेस्ड है। CLI बेस्ड मतलब समझ रहे हो, तुम टर्मिनल पे कमांड्स को रन कर सकते हो, राइट। तो Yes, sir. So CLI based
CLI मतलब जो कमांड हम यहाँ कमांड रन करते हैं ना, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स VS कोड में नीचे जितने होता भी है कोडिंग टर्मिनल। रहेगी वो तो कोडिंग नहीं करेंगे ना वहाँ पे यस, जो। कोड हम यहाँ करते हैं, बट यहाँ पे हम हाँ कमांड्स रन करते हैं, कमांड। राइट, अभी हम कमांड रन करके दिखाएंगे कैसे रन होता है, फिर और क्लैरिटी आएगी इस पे। राइट, वही बेसिकली कमांड का है क्या, मतलब हाँ कमांड, हाँ करता गिटहब क्या में है। कुछ कुछ, हाँ वो अभी कमांड्स के बारे में हम सीखेंगे, कमांड्स कौन कौन से रन करते हैं कुछ करने के लिए। ठीक। हाँ, सो एंड वन मोर थिंग कि गिटहब ये पूरा वर्कफ्लो यूज किस लिए होता है भैया, ये वही मैंने बताया ना कि टीम बेस्ड डेवलपमेंट है। तो किसी भी टीम में ना जो तुम्हारा एक होता है, मतलब इसको बेसिकली हम लोग मतलब टेक्निकल टर्म्स में मैं बोलूँ तो ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट बोलते हैं। ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट ये हर एक इंडस्ट्री में फॉलो होता है। हर एक मतलब किसी भी कंपनी में तुम जा रहे हो ना एज अ फ्रेशर जा रहे हो या 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी तुमको ये बेसिक चीजें आनी चाहिए, बिकॉज करंट मार्केट सिनेरियो ऐसा है कि तुमसे काफी सारी एक्सपेक्टेशन होती है, एंड ये बहुत बेसिक चीजें भी हैं। ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट का ये मतलब है कि एक पूरा मेन कोड बेस होता है, एक मेन कोड बेस होता है ना, वो बनता है। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम का जो बना ना, इंस्टाग्राम का तुम काम करो तो ये इंस्टाग्राम तुम्हारा मेन फीचर है ना। अब उसमें उसमें तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, ये मेन से बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें निकली ना। फॉर एग्जांपल एक तुम्हारा निकलेगा कि तुम इसमें प्रोफाइल पेज बना रहे हो, तो उसके लिए ये जो ट्रंक है ना, ये ट्रंक तुम्हारा मेन ब्रांच होता है बेसिकली, जहाँ पे सबके कोड मर्ज होते हैं। राइट, अब इस मेन ब्रांच में कोड कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत सारे फीचर से बना होगा ना, जैसे ये ट्रंक बेस्ड मतलब तुम ट्री को अज्यूम करो एक पेड़, तो एक पेड़ का जो मेन ब्रांच होता है ना वो ये है तुम्हारा। अब इससे बहुत सारे फीचर्स, डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे फीचर या अच्छे अच्छे फीचर तुम बेस्ड करो। फॉर एग्जाम्पल किसी एक डेव ए है, इसने प्रोफाइल पेज का कोड लिया, ये प्रोफाइल पेज पे काम कर रहा है, तो ये प्रोफाइल पेज का कोड लिखेगा, तो ये डायरेक्ट इसी ब्रांच में नहीं कंट्रीब्यूट करेगा, और इसी में करने लगेगा कुछ एरर आएगा तो ये तो पूरा आगे का पूरा कोड नहीं वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल इसने यहीं पे कुछ किया, गड़बड़ हो गया, तो आगे का पूरा कोड खराब हो जाएगा ना। तो हम कहते हैं कि भाई तुम इसमें से एक डिफरेंट ब्रांच बनाओ, उसमें अपना कोड लिखो, कोड लिख लो, तो उसको यहाँ पे टेस्ट करो, तुम अपनी ब्रांच को टेस्ट हो जाए, अच्छे से सब कुछ चल रहा है, तब तुम इसमें मर्ज करो। सिमिलरली हम डेव 2 से भी बोलते हैं, डेव बी फॉर एग्जांपल बी से बोलते हैं कि भाई तुम जिस भी पेज पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल तुम लैंडिंग वाले फीचर पे काम कर रहे हो, लैंडिंग पेज पे काम कर रहे हो, तो तुम इस अपनी एक सेपरेट ब्रांच बनाओ, इसको टेस्ट करो प्रॉपरली, टेस्ट अगर सक्सेसफुल हो तब इसमें ऐड करो, ताकि मेरा ये मेन ब्रांच वाला जो कोड है जो ऑलरेडी क्लाउड पे होस्टेड है, ये कभी मतलब कभी भी किसी वेबसाइट को ऐसे देखा है कि एरर आ रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट तो हर वक्त चलता है और डेवलपमेंट होगा तो एरर्स भी आएंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि कुछ भी एरर आया है, मतलब बहुत कम सुना होगा, बाय मिस्टेक ही किससे होता है। बट हाँ, ये इंडस्ट्री में ये प्रैक्टिस होता है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस पे वर्क करते हैं, फिर उसको मर्ज कराते हैं। राइट, सो एक गिट तुम्हें ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट वाला इन्वायरमेंट देता है। राइट, सो ये था तुम्हारा गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है। अब हम समझते हैं कि हम कंप्यूटर में कैसे किस वे में यूज करते हैं। राइट, एंड छोटे छोटे कमांड्स भी मैं बताता रहूंगा। राइट, फॉर एग्जाम्पल एक एक तुमको वो बताता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं अपन। फॉर एग्जांपल किसका ले एग्जांपल, फॉर एग्जांपल म्यूजिक इंडस्ट्री का लेते हैं। स्पॉटिफाई चलाया होगा तुम लोगों ने, स्पॉटिफाई है ना। तो स्पॉटिफाई पे क्या होता है, बहुत सारे गाने होते हैं। राइट, तो लेट्स से कि तुम कंपनी में गए हो, अब इस पे स्पॉटिफाई नया नया चालू हुआ है, तो इसका बेसिक कोड स्ट्रक्चर रेडी है जो क्लाउड पे है ना। तो तुम्हारा है कि डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग फीचर्स को ऐड करना, तो तुमने एक रेपो बनाया। रेपो क्या होता है अभी हम देखेंगे जब हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे होंगे ना। तो एक रेपो मतलब रेपोजिटरी बनाया। रेपोजिटरी जैसे तुम्हारे कंप्यूटर में फोल्डर होता है ना, फोल्डर के अंदर बहुत सारे फाइल्स होती हैं, वैसा ही समझ लो कि एक रेपोजिटरी हमने बनाया जिसमें सॉन्ग फीचर्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एंड ये तुम्हारा कहाँ पे होगा, ये तुम्हारा गिटहब पे होगा। कोई भी कंपनी गिटहब या बिटबकेट यूज करती है, गिटहब या गिटलैब। गिटलैब भी सेम है, थोड़ा सा यूआई डिफरेंट है, बट सारे फीचर्स गिटहब जैसे हैं। कुछ कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे गिटलैब में तुम गिटऑप्स वाली चीज, मतलब गिटऑप्स भी हम सेशन लेने वाले हैं, बट नॉट इन दिस सेशन, हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे इन फ्यूचर, है ना। तो गिटऑप्स बहुत मतलब गिटऑप्स फ्रेशर लेवल पे नहीं पूछता है कोई, बट किसी को इंटरेस्ट होगा तो
तुम लोग बोलना, मैं इस पे भी एक सेशन ले सकता हूँ, राइट। सो गिटहब या गिटलैब है तुम्हारा, लेट्स से, है ना। तो गिटहब पे तुम्हारा ये सॉन्ग फीचर नाम का एक रेपोजिटरी बना है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग के फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल तुम गए इंडस्ट्री में गए पहले दिन, तो तुमको बोला कि भाई तुम रॉक म्यूजिक, फॉर एग्जांपल रॉक म्यूजिक वाला पूरा फीचर इम्प्लीमेंट करके इसमें ऐड करो रॉक म्यूजिक के लिस्ट। फॉर एग्जांपल डिफरेंट कोई अगर कोई स्पॉटिफाई पे आया और रॉक सेलेक्ट करे तो उसको रॉक म्यूजिक वाली पूरी लिस्ट मिल जाए, एंड फिर वो किसी को भी यूज मतलब चला सकता है। तो ऐसा कोड लिखो, ये सारे फीचर्स हों उसमें, राइट। तो बोला ठीक है। तो ये उनका गिटहब पे जो मेन होस्टेड कोड है, ये उनका क्लाउड पे कोड है। तुमने बोला कि ठीक है, जो भी क्लाउड पे कोड है उसको मैं पहले अपने लोकल में लेता हूँ, क्योंकि मेन तो कोड इनका यही है ना। मेरे को जो भी ऐड करना, फॉर एग्जांपल कुछ म्यूजिक पहले से, फॉर एग्जांपल क्लासिकल म्यूजिक वगैरह इनका पहले से ही इसमें है। तो मैंने बोला कि ठीक है, जिस स्ट्रक्चर में कोड है ना, उस स्ट्रक्चर को पहले तो मैं अपने लोकल में ले आता हूँ। मैं कोड तो क्लाउड पे जाके थोड़ी ना करूंगा, अपने लैपटॉप में करूंगा ना। तो इसको बोलते हैं क्लोन, मतलब सेम टू सेम जो कोड है ना पूरा इनका कोड बेस में, उस कोड बेस को मैंने अपने लोकल कंप्यूटर में लिया पहले। ये तुम्हारा कंप्यूटर है, ये तुम्हारा कंप्यूटर है ना। तुमने बोला कि भैया मैंने गिट क्लोन कर लिया, ये कमांड होता है बेसिकली। क्लोन कैसे करते हैं? क्लोन के लिए हमको बस गिट क्लोन और वो गिटहब पे एक लिंक मिलती है, वो हम पेस्ट कर देते हैं, तो ये पूरा कोड हमारा आ जाता है। तो यही यही चीजें कमांड्स हैं, मतलब गिट क्लोन लिखना टर्मिनल में, ये कमांड है एक। अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकल करके भी, बट यस ये कमांड है। तो हमने अपने लोकल में लिया। अब लोकल में लिया भैया, तो लोकल में तो ये कौन सा मेन ब्रांच वाला कोड आया होगा ना, किसी और ब्रांच का थोड़ी ना आएगा, अपना मेन ब्रांच का कोड आएगा। तो ठीक है, मैंने यहाँ से मेरा जो मेन ब्रांच का कोड आया ना, मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने बोला कि ठीक है, मेन ब्रांच से मैं अपना एक लोकल ब्रांच बना लूंगा जिसमें मैं अपने फीचर्स को कोड करूंगा, राइट। तो मैंने बोला कि ठीक है, मेरे लैपटॉप में आ गया, मैंने अपना वर्किंग ब्रांच बनाया, अपना डिफरेंट वर्किंग, फॉर एग्जांपल वर्किंग ब्रांच बनाया। फॉर एग्जांपल ये जो ब्रांच थी, ये मेन ब्रांच मेरे लैपटॉप में आई थी। मैंने बोला कि लेट से मेरा नाम अभिषेक है, तो अभीस ब्रांच, है ना, अभीस, या रॉक म्यूजिक, है ना, रॉक ब्रांच, ऐसा कुछ भी रख दो। तुम पे डिपेंड करता है क्या नाम रखते हो, कोई भी नाम रख सकते हो। एक डिफरेंट ब्रांच बनाया, एंड यहाँ पे तुम अपने चेंजेस करो, यहाँ पे अपना रॉक म्यूजिक ऐड करो, नंबर ऑफ कोड जो भी मतलब जो भी लॉजिक है तुम अपना कोड ऐड करो। फिर तुम अपने मेन ब्रांच से, पहले तो अपने वाले ब्रांच से इसको जब तुम कर लोगे तो तुम इसको टेस्ट करोगे। लेट्स से तुमने टेस्ट कर लिया यहाँ पे कि चल रहा है क्या, रॉक म्यूजिक ही है ना, क्लासिकल म्यूजिक तो नहीं आ जा रहा है बीच में। तुमने टेस्ट किया, टेस्ट कर लिया, उसके बाद तुम्हारा टेस्ट सक्सेसफुल हो गया। तुमने मेन ब्रांच में कोड ऐड करवाया, है ना। मेन ब्रांच में तुम्हारे मतलब जो भी सीनियर्स होते हैं वो मेन ब्रांच में मर्ज करते हैं, एंड वंस एक बार तुम्हारा कोड मेन ब्रांच में आ गया, फिर इसको हम लोग क्लाउड पे पुश करते हैं। फिर तुम्हारा मतलब ये यहाँ तक गया, तब तक तुम अपने लैपटॉप में चला सकते हो। मेन ब्रांच पे तुम्हारे डिफरेंट डेवलपर्स जिनके पास मेन ब्रांच होगी वो चला सकते हैं। यहाँ पे है तो सिर्फ तुम चला सकते हो, क्योंकि ये वर्किंग ब्रांच सिर्फ तुम्हारी है। मेन ब्रांच पे है तो तुम चला सकते हो, जिन जिन ने यहाँ से ये मेन ब्रांच का कोड अपने में क्लोन किया था। मतलब यहाँ मैं ये बता रहा था ना, ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट, मतलब मैं बताता हूँ यहाँ से जब तुमने ये ब्रांच ली तो इस कोड को सिर्फ तुम चला सकते हो। लेकिन इसमें है अपने मेन ट्रंक ब्रांच में है, तो यहाँ पे तो जो भी इस कोड को अपने में पुल करेगा वो सब लोग चला सकते हैं, राइट। तो तुम्हारा मेन ब्रांच में जाएगा तो तुम्हारी इंटरनली टीम भी तुम्हारे कोड को टेस्ट कर पाएगी। तो बेसिकली जब तुम इस ब्रांच में मर्ज करते हो ना, तो यहाँ पे एक टीम होती है क्यूए टीम, आई थिंक तुमने नाम सुना होगा, टेस्टिंग टीम। तो ये टेस्टिंग टीम यहाँ पे तुम्हारा जब कोड मर्ज होता है तो पूरा टेस्ट कर रही होती है, रॉक म्यूजिक बजा के देख रही होती है बज रहा है कि नहीं भाई, है ना, कोई फ्लॉज तो नहीं है। फ्लॉज होते हैं तुमको यहाँ पे बग रेज करती है, तो तुम वापस से अपने वर्किंग ब्रांच में आते हो, फिर उसको फिक्स करके वापस से डिप्लॉय करते हो। ये एक साइकिल है। फिर जब तुम क्यूए टेस्ट करके बोल देती है कि सक्सेसफुली बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारा हो गया, फिर तुम पूरी दुनिया के लिए अपने क्लाउड वाले रेपो में ऐड करा देते हो, है ना, मतलब पुश कर देते हो, कोड पुश कर दिया, इसको बोलते हैं पुश करना, कोड पुश। फिर अब यहाँ पे फिर स्पॉटिफाई पे पूरी दुनिया तुम्हारे रॉक म्यूजिक वाले फीचर को सुन सकती है, राइट। अब एक और चीज, अब लेट से कि आया एक और डेवलपर है, उसको भी काम मिला था। उसने क्या किया, उसने भी गिट क्लोन किया, एंड उसको एक डिफरेंट
मतलब सेट ऑफ कोड करना था। फॉर एग्जांपल क्या रख लें, मतलब इसको इसको कौन सा फीचर कोड करवा दें, लेट से इसको ऐड करना था, एड्स, म्यूजिक के बीच में एड्स वाला फीचर ऐड करना था कि भाई म्यूजिक के बीच में अगर ऐड दिखाना हो तो हम ऐड भी दिखाएंगे, राइट। तो इसने भी बोला कि ठीक है भैया, मैं मेन सबसे पहले तो जो भी मेन कोड है उसको लेता हूँ अपने लैपटॉप में, अपने लैपटॉप से अपनी एक वर्किंग ट्री बनाता हूँ, राइट। वर्किंग ट्री बनाता हूँ, मतलब वर्किंग ट्री क्या, मतलब वर्किंग ब्रांच, सॉरी, वर्किंग ब्रांच बनाता हूँ। ये मेरी वर्किंग ब्रांच है, मैं यहाँ पे ऐड वाला कोड लिखूंगा, फिर खुद खुद टेस्ट करूंगा, जब मैं टेस्ट कर लूंगा तो फिर इसमें ऐड कर दूंगा, यहाँ पे क्यूए टीम टेस्ट करेगी। एंड फिर अब देखो, ये ऐसा मानो कि जब इसने इसको और इसको एक साथ काम मिला था, तो इसने लिया और फटाफट अपना करके रॉक म्यूजिक ऐड कर दिया। लेकिन इसने जब लिया था तो ये रॉक म्यूजिक वाला फीचर नहीं गया था, राइट। तो ये तो चेंज हो चुका है, लेकिन जब ये भेजा, इसमें जब इसने, इस बंदे ने जो कोड किया है उस वक्त तो इसने पुल किया ना, तो इस केस में डायरेक्ट पुश करने का ट्राई करेगा तो इसके में आएंगे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट इसलिए आएगा क्योंकि इसका कोड अभी इसके में नहीं आया ना, इसके फीचर्स इसके में दिखने चाहिए ना, क्योंकि अपना मेन कोड बेस से इसने पुल लिया था, तो इसके भी फीचर्स दिखने चाहिए। रॉक म्यूजिक में भी तो ऐड करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल म्यूजिक चल रहा है बीच में ऐड तो रॉक म्यूजिक में भी करना था, बट इसने वो पुल नहीं किया। तो ये इस केस में क्या करेगा कि जब भी, हमेशा एक अच्छी प्रैक्टिस होती है पुश करने से पहले पुल करो और फिर चीजों को ऐड करो और फिर पुश करो। तो इनको पहले क्या करेगा, ये पुल करेगा, पुल एंड मर्ज, पुल करेगा, मर्ज करेगा एंड वापस से पुश करेगा, राइट। सो ये वर्कफ्लो होता है बेसिकली किसी भी इंडस्ट्री, मतलब ये किसी भी कहीं भी जा रहे हो, किसी भी इवेंट में पार्ट ले रहे हो, तो ये सब चीजें तुम फॉलो अप कर रहे होगे, है ना। सो यस, एक बार मतलब इसमें किसी को डाउट है क्या, मतलब मैंने जो बताया, तो ये कैन वाला बी, बता दिए फिर से। क्या ये वाला, हाँ, कि मतलब पहले वो लेगा, मतलब हाँ, अभी उसमें आया नहीं रॉक वाला जो बनाया है, हम्म, तो अभी उसको अपलोड नहीं किया उसमें, मेन हम्म, जो है। ठीक है, तो फिर वो पहले ही ले लिया और उसमें हाँ, ऐड ऐड जो है ऐड करने की ऐड कोशिश किया, किया। ठीक है, फिर जाके फिर पुल करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, जब तो वो रॉक वाला अपडेट हो गया है, फिर हम्म, पुल करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर नहीं ओके, होगा ना। नहीं नहीं होगा ना, क्योंकि इसको तो क्या, इसने जब लिया था तो ऐसा समझो कि पहले स्टार्टिंग में जब ये क्लाउड पे था तो इसमें क्लासिकल म्यूजिक ही सिर्फ था। तो क्लासिकल म्यूजिक में इसको क्या करना था, रॉक म्यूजिक वाला फीचर ऐड करना था इसको, जो भी म्यूजिक है सारे म्यूजिक में एडवर्टाइजमेंट ऐड करना था। तो इसने रॉक म्यूजिक अपना डाल दिया, एंड इसने जब कोड लिया तो इसको तो पता है कि भाई सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक है, तो मैंने उसमें एडवर्टाइजमेंट डाल दिया। बट ये जब इसमें पुश किया कोड तो इसको पता चला कि यार रॉक म्यूजिक भी है उसमें, तो मैंने डाला ही नहीं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, जो भी लेटेस्ट कोड गया है उसको पुल करना पड़ेगा, उसमें फिर चेंजेस करने पड़ेंगे, अपने ब्रांच में लेके चेंज करके टेस्ट करके इसमें डालना पड़ेगा एंड वापस से इसको डालना पड़ेगा, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए, कोई चीज ऐसी छूट ना जाए, राइट। क्योंकि जब इसने डाल दिया था तो इसको पता नहीं था ना, राइट। सबको समझ ये में आया तो। क्या? और एक सवाल ये यस था भैया। अच्छा, कि जो मेन ब्रांच पहले क्लोन किया, हाँ, मेन से जो हम्म, GitHub GitLab जो भी है उससे पहले हाँ, क्लोन किया अपने मेन हाँ, ब्रांच में, करेक्ट। और मेन ब्रांच से फिर वो वहां से चेंज करेगा कि फिर अपने लोकल में लेगा। नहीं, पहले अपने लोकल में लेगा ना, हम डायरेक्ट मेन ब्रांच पे कोड नहीं चेंज कर सकते, हमको पहले अपनी वर्किंग ब्रांच बनानी पड़ेगी। अगर हम डायरेक्ट मेन ब्रांच में चेंज करते हैं एंड हमसे कोई भी गलती हो सकती है, फॉर एग्जांपल हम सेमी कोलन लगाना भूल जाते हैं और कोड फटता है, तो पूरा वो तो मेन ब्रांच में सबके लिए फटने लगेगा ना। मेन ब्रांच से बहुत सारे डेवलपर, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट होता है, ये अपनी मेन ब्रांच है ऐसा समझो, है ना। यहाँ से ये भी कोड लेगा, ये भी लेगा, ये भी लेगा। अगर हमने डायरेक्ट यहीं पे एरर कुछ कर दिया तो इसके में भी गलत जाएगा, इसके में भी गलत, सबके में एरर आने लगेगा ना। तो हम पहले अलग बनाते हैं, इसको टेस्ट करते हैं, अगर ये सही तो होता है वो तो हम लोग क्लोन क्लोन करते हैं ना वो चीज मेन ब्रांच से। नहीं नहीं, क्लोन नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, मेन ब्रांच को क्लोन नहीं करते हैं, मेन ब्रांच से अलग हाँ। ब्रांच बनाते हैं।
क्लोन हम क्या करते हैं, रेपोजिटरी पे जो भी कोड होता है उसको अपने जो क्लाउड पे कोड है उसको अपने लैपटॉप पे लेने के लिए क्लोन करते हैं। एंड जब इसमें आता है तो इसमें मेन ब्रांच होता है, इस मेन ब्रांच से एक अलग अच्छा ब्रांच जी। बनाते हैं, अपना ब्रांच, ऐसा। हाँ, लोकल ब्रांच एक अपना बनाते हैं लोकली, करेक्ट। जिसमें हम कोड करते हैं। फिर यस। उसके बाद उसको मेन में अपलोड करते हैं। फिर जब मेन में सारी चीजें चलने लगती हैं, सब लोग जब तब हम सारे भी मेंबर हैं तो चेक कर तब लेते हैं, उसके बाद फिर ठीक है। करेक्ट करेक्ट यस। और भी किसी को डाउट है तो यू कैन मतलब आस्क, फील फ्री टू आस्क, मतलब ये अपना सेशन है तो मेक इट मोर इंटरेक्टिव एंड यू कैन आस्क एनीथिंग, मतलब नो वन गोइंग टू जज यू हियर, राइट। सो अगर डाउट नहीं है तो हम प्रैक्टिकल डेमो देख सकते हैं, अदरवाइज डाउट है तो यू कैन आस्क, दिस इज योर टाइम। यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट्स, मतलब इस सेशन में डाउट है तो बताओ। नहीं है, ओके, ठीक है। सो Yeah, please show the diagram so I will take a screenshot. यस, राइटिंग तो बहुत गंदी बनी है। कोई नहीं, मैं तुमको डॉक्यूमेंटेशन दूंगा ना, उसमें अच्छा होगा। क्या बताऊँ, मेरी राइटिंग ऐसी है। इसका लिंक डाल दीजिएगा ग्रुप में। यस यस, मैं लिंक डाल दूंगा। सो कैन वी मूव फॉर द डेमो? Yes, bhai. I feel yes. ओके, थैंक्स। सो आशित, Uh, बाकी सब आशित बाकी सबका रिस्पांस कैसा है भैया? ये एवरीवन इज वाई सो क्वाइट क्वाइट, कैन वी हैव सम रिस्पांस? यस, नॉट एन इशू, एक बार देख लेते हैं, प्रैक्टिकल डेमो में भी देख सकते हैं। आई थिंक डेमो में डालता हूँ, आई थिंक नहीं है डाउट। ओके भैया, लेट्स कंटिन्यू विद दिस। ओके, सो आशित कैन वी मूव फॉर द डेमो, एक बार वो सीन। यस भैया। थैंक्स। हाँ, सो एक बार मतलब मेरा मैक है बेसिकली, मैं बिट बकेट पे मेरा लॉगिन है, तो गिटहब पे एक बार देखते हैं, फिर डाउट होगा यू कैन आस्क, मतलब देखो बीच में कोई तुमसे कुछ ऐसा नहीं करेगा, पूछेगा, तो फील फ्री टू इंटरेक्ट मोर, आस्क डाउट्स। सो ये देखो हर्षित, पहले वो गिटहब वाले पेज पे जाओ, गिटहब खोलो, फर्स्ट पेज, हाँ ये वाला पेज। देखो ये तुम्हारा जो फर्स्ट टाइम github.com पे आते हो ना, देखो यूआरएल में github.com है, तो ऐसा तुम्हारा यूआई खुलता है अगर तुमने अकाउंट क्रिएट करा होगा, राइट। सो ऐसा पेज खुलेगा, यहाँ पे देखो राइट साइड पे इधर न्यू जहाँ लिखा है, ये इस साइड आश्रित, हाँ यहाँ न्यू, यहाँ पे तुम नई रेपोजिटरी बना सकते हो, इसके नीचे जो तुम्हारी ऑलरेडी मेड रेपोजिटरीज हैं वो वाली लिस्ट होगी, राइट। एंड यहाँ पे तुम देखो फीड में, देखो फीड, फीड में जैसे तुम्हारा इंस्टाग्राम ट्विटर चलता है ना, फीड पे जो भी इवेंट्स चल रहे होते हैं वो सब दिखते हैं, राइट। एंड तुम्हारा टॉप राइट पे जाओ, इस साइड पे जहाँ तुम स्टार्टिंग में गए थे आश्रित, प्रोफाइल जहाँ तुम्हारा दिखेगा, हाँ यहाँ पे तुम्हारा प्रोफाइल, यहाँ पे क्लिक करो, देखो तुम्हारा प्रोफाइल, तुम्हारे रेपोजिटरी, तुम गिटहब को पायलट भी है जो एआई टूल है, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स, हर एक चीज तुम्हारी दिखेगी। तो ये फ्री का तुमको स्पेस मिलता है, तो यू शुड हैव टू यूज, मतलब तुम्हें यूज करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। जैसे तुमको गूगल ड्राइव है ना, तुम्हारी गूगल ड्राइव में स्पेस यूज करते हो ना, तो ये भी फ्री में सर्विस है, तो यू कैन यूज दिस। तो ये देखो, ये आशित की प्रोफाइल है ना, तो जो जो इसने किया होगा, तुमको ऐसे अपना पेज बहुत अच्छा मेंटेन करके ऑलरेडी रखना चाहिए, राइट। करेक्ट। सो एक बार आशित उधर जाओ एंड लेट्स क्रिएट वन रेपोजिटरी फॉर Lord be again, कोडबेस। right? तो तुम कोई भी नाम दे दो, जैसे डेमो इंस्टाग्राम कोडबेस या कुछ भी ऐसा, डेमो कोड मेंटीज कोडबेस, है ना। तो ये हमारा मेन है, डेमो इंस्टा, हाँ करेक्ट है। एंड देखो, रुको रुको रुको, यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं, जब तुम रेपोजिटरी का नाम कुछ भी ऐसा रख सकते हो, बट यूनिक होना चाहिए, वो बताते देगा जैसे ये नेम अवेलेबल है कि नहीं, राइट। फिर इसके बारे में तुम डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो कि इसमें क्या क्या चीज कोड, जैसे इसमें डिस्क्रिप्शन में थोड़ा 2 लाइन लिख दो आश्रित कि दिस इज रिगार्डिंग डेमो ऑफ रेप गिटहब, डेमो गिटहब, ऐसा कुछ लिख दो।
ऑफ गिटहब, है ना। तुम मतलब पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट है ना। फिर इसकी विजिबिलिटी पब्लिक है या प्राइवेट है। पब्लिक मतलब हर कोई देख पाएगा तुम्हारा कोड, ओपन सोर्स जैसी चीजें हो पाएंगी। प्राइवेट मतलब सिर्फ तुम देख सकते हो, तुम इंटरेक्ट कर सकते हो। तो पब्लिक भी रख सकते हो, आई कैन से कि तुम पब्लिक रख सकते हो ताकि कोई भी देखे तुम्हारा कोड। अच्छा कोड है तो तुम रीडमी फाइल ऐड कर सकते हो, अभी जरूरत नहीं है। रीडमी फाइल बेसिकली तुम थोड़ा बहुत अपने कोड को समझा रहे होते हो जो तुम्हारा कोड कर रहा होता है, ठीक है। गिट इग्नोर हम उसके लिए ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी फालतू की फाइल्स होती हैं, तुम चाहते नहीं हो कि गिटहब पे जाए जब हम भेजें तो गिट इग्नोर उसके लिए है। तो क्रिएट करो रिपोजिटरी, है ना। इसमें किसी को डाउट होगा तो बता सकता है मेरे को। मतलब तुम इसके बाद खुद से भी ट्राई करना, बिकॉज आई बिलीव कि जब तक तुम खुद से नहीं ट्राई करोगे तब तक नहीं आएगा। तो कभी भी डाउट आए फील फ्री टू पिंग मी एंड अपनी कम्युनिटी में। अगर कोई कम्युनिटी में नहीं होगा मैं आई विल डेफिनेटली ऐड यू, मतलब टाइम कम था तो मैं ऐड नहीं कर पाया। सो यस दिस मतलब तुम्हारा ये बन गया, एक रेपोजिटरी बन गया। अब स्टेप्स क्या, तुम अपने कोड पे जाओ आशित, वहां पे वो करो अपना, मतलब एक पूरा वो पुश वाला सेशन अपने को करना है। तो First I will create a रिपोजिटरी हम्म रिपोजिटरी जो है हम्म। ये अ, जैसे बता रहे थे उसमें, तो ये हम जो बनाते हैं वो है मतलब, या फिर जैसे हाँ, कोई भी कंपनी अपने अपना कोड बेस, अपना रेपोजिटरी किसी भी नाम से रख सकती है। हम बना सकते हैं ना हम्म, अपना कोड बेस, जैसे जिससे इंस्टाग्राम के। मतलब पूरा पूरा वेबसाइट जिससे वो होगा, यस, पूरा वेबसाइट जैसे जिससे जाएगा। मेन ब्रांच टाइप का। हाँ, मेन कोड इस रेपोजिटरी में रहेगा, है ना। अच्छा, तो इसको मतलब जैसे कोई भी हैंडल कर सकता है, मतलब मेंबर के जितने भी वो रहेंगे सब नहीं, रहेंगे। हमारे अलावा जो ओनर होता है ना, जिसने बनाया है, उसके अलावा सिर्फ सब लोग देख सकते हैं, है ना। और जो ओनर है उसकी परमिशन से ही ले सकते हैं चीजें इसमें। अगर पब्लिक है अच्छा, फिर मतलब तो अगर आश्रित प्रो अगर बनाए हैं हाँ तो यही सारी चीजें इसमें डालना है क्या, क्या इसमें ऐड करना है, करेक्ट। ये किसका मतलब अगर कोड है हाँ, सही है, ये अभी हाँ इसको यही कर अभी हम पाएंगे। लोग इसको आगे डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग मल्टीपल ब्रांचेस की भी चीजें देखेंगे कि अगर अलग अलग ब्रांच पे हम लोग ऐड ऑन करते हैं तो फिर क्या होता है, हम्म। कैसे होता है। और जैसे इसको लेके मैं, अगर मुझे कुछ इसमें दिख रहा है कि अगर मुझे इसमें ऐड करना है, तो इससे मैं लेके क्लोन कर लूंगा अपने लोकल में, और फिर मैं इनको फिर बताऊंगा, भेजूंगा कि ये चीजें हैं इसमें यस ऐड करना है, तो हाँ ये ऐड करेंगे इसमें। यस, अभी हम लोग वही करने जा रहे हैं एक बार। ठीक। यस, ठीक है आशित, कंटिन्यू करो। तो एक बना हमने लिया है। फोल्डर बना लिया, इसमें हम इस फोल्डर में हम कोड करेंगे। तो वीएस कोड एक बार खोल के, वीएस कोड में हमने एक फोल्डर बनाया है जिसमें हम लोग अपना कोड लिखेंगे कोई भी। एंड पहले वहां से लेके कोड वो वाले ब्रांच को फिर क्लोन करके इधर, मतलब यहाँ पे कुछ भी कोड लिख लो जो तुम्हारा कोड है ना। अभी तो मुझे पता है कि खाली है वो। मैं कोई डॉट कोड सी लिख मतलब लेता हूँ। सी प्लस प्लस का मैं कोड कोई लिख रहा कोड है। ले लेता हूँ। हाँ, कोई भी कोड डेमो के लिए ले लो। हाँ ठीक है। अभी कंट्रोल। वो तुम्हारे में एक्सटेंशन का इशू हो रहा होगा। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिख सकते हो, बट चलेगा, हम तो पुश कर रहे हैं, वही उसे भेज रहा चलेगा। ठीक है, तो गेट इनिशियलाइज कर लो। इनिट होगा आई थिंक तुम्हारा। हूँ। राइट। हाँ, गिट इनिट करते हैं। इससे क्या होता है कि अपना इनिशियल गिट, अब ये गिट इनिट करने से क्या होता है, बेसिकली ये कमांड है। इससे होता है कि तुम्हारे वीएस कोड को पता लग जाता है कि तुम एक गिट वाली चीजें परफॉर्म करने वाले हो। गिट से इनिशियलाइज हो जाता है, मतलब, है ना। तो गिट इनिट हम इसीलिए लिखते हैं कि मतलब अब हम गिट के कमांड आगे डालेंगे एंड हम उससे अपना कोड पुश करने का ट्राई करेंगे, राइट। अब हम गिट क्लोन कर रहे हैं, तो गिट क्लोन, और मैंने बोला था एक लिंक मिलती है गिटहब पे ही। तो देखो यहाँ पे जाओगे तो ये देखो ये लिंक मिली है। ये लिंक मैं गिट क्लोन करके, ये लिंक कॉपी करके वहां पे क्लोन के आगे पेस्ट कर दूंगा। तो मेरा ये पूरा पूरा रेपोजिटरी मेरे इसमें आ जाएगा, राइट। एंटर मारो। देखो डेमो डेमो अंडरस्कोर इंस्टा नाम से उधर बनाया था ना, तो वो तुम्हारा इधर आ गया। ठीक है, देखो ये फोल्डर बन गया, राइट। इस फोल्डर में कुछ भी, हाँ एम्प्टी फोल्डर। इस फोल्डर में तुम्हारा ये कोड है 1003.cpp। तुम्हारा कोई भी कोड होता है, हो सकता है HTML का, हो सकता है CSS का, हो सकता है। सिंस अगर देखो डेमो इंस्टा अभी क्या था, एम्प्टी रेपोजिटरी था, उसमें पहले से कोई कोड नहीं था, तो हमारा ये पहली बार कोड जाएगा। अगर कुछ कोड होता तो वो कोड भी इसमें आता ऑलरेडी, राइट।
तो जो भी कोड होगा वो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, राइट। हाँ, आगे परफॉर्म करो आशित, ऐड करो अपने कोड को। हाँ, तुमने कोड लिख लिया, अब उसको ऐड करोगे। अब ऐड करोगे तो ये स्टेज में चला जाएगा, स्टेजिंग एरिया में चला जाएगा, मतलब ये तुमने, चेंजेस में है। हाँ तुमने ऐड कर दिया, तुम्हारे चेंजेस में चला जाएगा, राइट। अभी इस यहाँ पे तुम क्या करोगे, यहाँ पे जो भी तुम्हारे चेंजेस होंगे ना, इनको तुम ऐसा बोल रहे हो कि अब ये रेडी है मेन ब्रांच से जाने के लिए, राइट। तो इसको कमिट करने का ट्राई करना आगे। वेट, हाँ, उस वाले उसमें उस चले वाले जाओ। फोल्डर में जाना पड़ेगा एक्चुअली। यस, उस वाले फोल्डर में चले जाओ, यस। वहां पे ऐड करो, यस। ऐड हुआ। ये प्लस करो, प्लस वाला जो सिंबल है ना उसको यूज करो। ये प्लस, ये देखो, ये इधर प्लस है ना। हाँ, इसको ऐड करो, इससे ऐड हो गया, तुम्हारा स्टेजिंग एरिया में चला गया, राइट। अब स्टेजिंग एरिया में तुम्हारा कोड है। अब तुम इसको कहाँ पे पहले भेजोगे, स्टेजिंग एरिया में है तो तुम्हारे लोकल में था, अब तुम मेन पे भेजने का ट्राई करोगे ना, मेन ब्रांच में। हाँ, देन पहले उससे पहले हम लोग कमिट करेंगे भैया। हाँ, तो कमिट करो पहले। कमिट मतलब हमारा रेडी है, रेडी है उधर जाने के लिए, राइट। रेडी को कुछ भी दे दो, ये तुम देखो, अब एक सेकंड रुको। गेट कमिट और ये माइनस एम, पता है माइनस एम मतलब एक मैसेज के साथ भेजते हैं ताकि पता चले कि क्या चीज, कौन सी फीचर जा रही है, राइट। तो गेट कमिट हाइफन एम का मतलब मैसेज। कमिट का मतलब तुम स्टेजिंग एरिया से मेन ब्रांच पे पुश कर, कोड को ले जाने के लिए रेडी कर रहे हो कि भाई अब रेडी हो चुका है। अब ये मतलब इस स्टेज पे ये क्या होगा कि तुम्हारा जो लोकल ब्रांच था उससे मेन वाले पे जाएगा, राइट। करो, यस। तो ये तुम्हारा ऑन ब्रांच मेन, और फिर हाँ, तुम्हारा आशित उस पे नहीं है, मेन फोल्डर पे नहीं है। एक बार इसको एलएस करो एक बार। मास्टर पे। हाँ, एलएस करो, यस। एलएस में कुछ नहीं आ रहा क्या? एक बार सीडी स्पेस माइनस माइनस करो, सीडी स्पेस डॉट डॉट। अब यहाँ एलएस करो। अब हाँ, सीडी डेमो अंडरस्कोर इंस्टा पे जाओ। नहीं, एक्चुअली भैया उसके अंदर नहीं ना हमारा कोई भी कोड, हमने वो किया है। हाँ, तो उसमें कोड ऐड करेंगे ना अपन। हाँ, ये उससे इसको पहले। इसको हाँ, इसको उसमें मूव कर दो, यस। मूव कर दो, यस। अब जाओ सीडी डेमो अंडरस्कोर सीपीपी, सॉरी, डेमो अंडरस्कोर इंस्टा। हाँ, अभी यहाँ से हम लोग ऐड करेंगे। हाँ ऐड करो। रुको, सीडी ऐड नहीं, गेट ऐड। ओह सॉरी। यहाँ डाउट अगर आ रहा होगा किसी को या कोई कंफ्यूजन हो रही है पूछ सकता है। हाँ देखो, हो गया भैया। हाँ, ये तुम्हारा ऐड हो गया है, राइट। अब कमिट करो वापस से, एरो को यूज करो एंड गेट कमिट करो, यस। देखो, एक फाइल तुम्हारा ऐड हो गया है। तुम मतलब देखो, इसके पहले इशू क्या आ रहा था आश्रित के में, कि वो अपना जो क्लोन किया था ना उस वाले फोल्डर में उसने चेंज नहीं किया था कुछ, उसने फाइल बाहर ही बना ली थी, एंड वो उस फाइल में गया नहीं था। तो सीडी कमांड यूज करके हम उस डायरेक्टरी में गए, एंड फिर हमने उसमें एक फाइल ऐड किया, एंड अब उसको हम कमिट कर चुके। कमिट का मतलब इतना सिंपल रखो कि ये कोड हमारा मेन में जाने के लिए अभी रेडी है, रेडी स्टेट बताता है, राइट। हाँ, अब गिट गिट पुश करो, गिट पुश ओरिजिन मेन, गेट पुश ओरिजिन। मेन मेन ही है ना, वहाँ पे एक बार देख लेना। नहीं नहीं नहीं, मास्टर है। हमको तो पहले एक ब्रांच बार चेंज करनी पड़ेगी। अपना ब्रांच देख लो वहाँ। हाँ, तो गिट ब्रांच अभी कर सकते हो ना, यहाँ पे गिट ब्रांच एक बार देखो। स्टेटस देख लूँ, पहले ब्रांच चेंज हाँ, करूँ। गिट, हाँ अपना गिट ब्रांच करो बस, सिर्फ अब तुम्हारा ब्रांच बता देगा। मेन। मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच है, करेक्ट है। गिट पुश ओरिजिन मेन कर दो, गेट पुश ओरिजिन। मेन। ओके ओके भैया। हाँ, हो गया। उधर जाओ, अभी यूआई पे जाओ अपने, वहाँ पे कोड चला गया तुम्हारा।
जाओ हाँ अभी गिटहब पे, अगर जाओ गिटहब बस पे। बस जा रहा हूँ एक। देखो यहाँ पे देखो ये कोड आ गया यूजिंग गिट, है ना। अब डिफरेंट ब्रांच से भी करके देखते हैं आशित। राइट। जाओ अभी देखो सर यहाँ पे हाँ पूछो। सर जैसे गिटहब पे हमारी कई सारी रिपोजिटरीज होती हैं, तो हाँ। अगर हमें वीएस कोड से कोई कोड में जैसे मैं पुश करती हूँ गिटहब पे, हम्म। तो मेरे साथ हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है ना कि मुझे जिस रिपोजिटरी में पुश करना होता है मैं उसमें नहीं कर पाती हूँ। अच्छा, तो एक काम किया करो ना, तुम करंट रेपो को जब तुमने वो क्लोन किया था तो किस रेपो को क्लोन कर रहे हो वो चीज किया करो ना। फॉर एग्जाम्पल जब स्टार्टिंग में आशित ने किया था तो गिट क्लोन, और जो रेपो की लिंक थी उस रेपो को उसने क्लोन किया था, है ना। तो सपोज जब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अभी। आप जैसे हाँ, ये हमारी कोई भी मान लो आप, ये रेपो है। अभी इसमें हमको कुछ डालना है। जैसे तो हम लोग इसको क्लोन करेंगे यहाँ पे। इसको इसकी यहाँ से लिंक लो। कॉपी करके, देन यहाँ पे गिट क्लोन, कहाँ लिखा है ये, गिट क्लोन। फिर देन यहाँ पे वो वाली जो हम लोगों ने ये जिस रेपो में हमको डालना था उसकी हम लोगों ने लिंक कॉपी की है। देन यहाँ पे हम लोगों ने पेस्ट किया क्लोन करके। अभी आप देखना यहाँ पर रीडमी फाइल थी, बट हमारे जो ये वाला फोल्डर था इसमें कहाँ है? इसमें कोई भी रीडमी फाइल नहीं थी। अभी हम लोग जब इसको क्लोन कर लेंगे, देन इसमें क्लोन करने के बाद रीडमी फाइल आ जाएगी। देखो जॉबग्राम नाम से एक डिफरेंट फोल्डर बना, उसके अंदर देखो जो पहले से कोड था वो आ गया इस रेपो का, हम्म। राइट। ओके। यस। तो सर पहले क्लोन करना है रेपो को, फिर उसमें ऐड करना है। हाँ, बिना क्लोन किए हम ऐड करेंगे तो फिर तो पता नहीं ना कहाँ जाएगा कोड, राइट। सो ओके सर। यस, करेक्ट। देखो स्टार्टिंग में हम लोग जब करेंगे ना तो गलतियां होंगी, बट डोंट वरी, उससे तुम सीखोगे ही। मतलब आज हमने जैसे एक स्टार्टिंग में हमसे ये गड़बड़ हो गई थी कि हमने वो देखा नहीं कि कौन से डायरेक्टर में आया है, राइट। मैंने इसलिए डिफरेंट फोल्डर बनाने का बोला था, क्योंकि डिफरेंट फोल्डर बनाओगे हर एक चीज के लिए डिफरेंट फोल्डर बना के क्लोन करो, और फोल्डर उसी नाम से बनाओ जिस नाम से तुम्हारा रेपोजिटरी है, तो तुमको पता रहेगा कौन से रेपोजिटरी का कोड किस फोल्डर में है, राइट। वहां से कंफ्यूजन नहीं होगा। सो आश्रित एक काम करते हैं ना, इसी अब में तुम्हारा अभी ब्रांच चेंज करके तो करते हाँ, हैं। जैसे अभी ये प्रभु लेते हैं। अभी हम्म, मेरी थी डेमो इंस्टा थी। हम्म, अभी इस पे हमारा कोड पड़ा है। हम्म। नेट डिस्प्ले का खुल रहा है। आ गया। मे बी नेटवर्क डिस्प्ले। जैसे इस पे 103.cpp पड़ा है, बट जो हमारा फोल्डर है इसमें अब जॉबग्राम भी आ गया और रेडमी फाइल भी आ गई है। राइट भैया। तो अभी इसमें हम लोग मेन ब्रांच से कर रहे थे। अगर हमको यही सेम चीज डालनी है, अगर हमको दूसरे ब्रांच से डालनी है, जैसे हम लोग कर दिए कि गिट ब्रांच अपनी चेंज कर दी, गिट ब्रांच कैपिटल एम हाइफन कैपिटल एम, देन ब्रांच हमने कर दिया जैसे माई ब्रांच। ब्रांच, ब्रांच का नाम तुम कुछ भी रख सकते हो, तुम हाँ पे कुछ भी डिपेंड। रख सकते हैं। हमने अब हमारी ब्रांच चेंज हो गई है। अब ब्रांच चेंज होगी, अब हमको इसको पुश करना है। अब पुश करने के लिए पहले तो हम लोग वही गिट ऐड करते हैं। गिट ऐड। कुछ चेंज भी कर दो कोड में, दैट भैया कोड रेडमी। चेंज हो गया। एक्चुअली हम लोगों ने जॉबग्राम को और रीडमी फाइल हाँ की है ना। हाँ, रेडमी फाइल है, इसमें दो दो तीन लाइन चेंज कर दो ताकि वो चेंजेस तुम इनको दिखेंगे ना, नहीं यहाँ पे कुछ अभी, डाल दो। हाँ ये हमारे रेपो में है ही नहीं। रेपो में ये खाली तुम्हारे 103.cpp है। नहीं, तो अभी तुमने जॉबग्राम। इसको इनिशियलाइज कर दिया है ना, नई इसको हाँ। क्लोन कर दिया है ना। हम्म। हाँ ठीक है, कंट्रोल लेस करो एंड गिट ऐड करो। गिट ऐड। हाँ देखो, यू हैव एडेड अनदर गिट रेपोजिटरी इनसाइड योर करंट रेपोजिटरी, ठीक है। तो तुमने दो रेपोजिटरीज को एक में ऐड कर दिया है, राइट, इसीलिए ऐसा दिखा रहा है। तो अब क्या करोगे, मैं बताऊं क्या करोगे। हाँ या तो इसको डिलीट करके हम लोग दूसरा फोल्डर बना लेते, मतलब हाँ इसी नहीं फोल्डर में नहीं, ही।
इस फोल्डर को हटाओ और एक काम करो, गेट इनिट अपना ओरिजिनल डेमो इंस्टा वाला करो एंड वहां पे डिफरेंट ब्रांच बना के वहां करो, राइट। भैया बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। यस, देखो क्या हुआ ना, अभी जैसे किसका डाउट था, क्षमता का डाउट था ना, डिफरेंट किस ब्रांच में क्लोन होता है उसमें डाउट, मतलब इनको डाउट था ना कि किस रेपो में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम होती है, राइट। तो हाँ हमने क्या किया, एक रेपोजिटरी हमने क्लोन की थी, उसके अंदर इनको एक और रेपोजिटरी क्लोन करके बताया कि जो रेपोजिटरी आप क्लोन करोगे उसमें तुम्हारा कोड आ जाएगा, राइट। बट अभी आशित को चेंज करना था डेमो अंडरस्कोर, क्या नाम था, इंस्टा इंस्टा वाले पे, राइट। तो इसने क्या किया, कोड इसी में चेंज करने का ट्राई किया, बट वो करंट कौन सी रेपोजिटरी यूज ले रहा है, नई वाली, जॉबग्राम वाली। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना, यही तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट है, राइट। जब कोई चेंज हो चुका है एंड जब तुम्हारे पुराने वाले चेंज को नहीं पता है, तो वहां मर्ज कॉन्फ्लिक्ट देगा कि हाँ भाई ये इशू है इस कोड में, राइट। ओके। कुछ भी तो बेसिक एक्चुअली सा कोड लिख दो। हम लोग मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे। मतलब कॉन्फ्लिक्ट, देखो कॉन्फ्लिक्ट वो आएगा, देखो वो कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो उसको फिर हम कैसे रिजॉल्व करेंगे वो हम दिखा रहे हैं, जो आई थिंक लास्ट सेशन में नहीं हुआ था, लास्ट नहीं सेशन हुआ में हो था, यस। गया। नहीं हुआ था भाई। तो ये थोड़ा तुम लोगों के लिए नया रहेगा, कुछ भी ले लो, सी इन एन करा के या प्रिंट करा दो हेलो भैया वर्ड या कुछ भी। समझ नहीं आया, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया ये नहीं समझ आया। हाँ, तो देखो कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए आया क्योंकि आपका एक रेपो हमने क्लोन किया था, राइट, गेट इनिट करके डेमो अंडरस्कोर स्टार, राइट। उसके अंदर हमने एक और रेपो ले लिया, राइट। अब इस रेपो में जो कोड है वो पुराने रेपो को नहीं पता है, राइट, क्योंकि लोकली है ना ये दोनों। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। यस। सो जब इसने ऐड किया तो अपने CLI ने बोला, गिट ने बोला हमें कि ये आप जो कोड भेज रहे हो इसको तो मैं जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो पुराने वाले कोड को जानता हूँ, क्योंकि वो वाले ये तो नए हैं मेरे लिए। तो आप इसमें ऐड डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप इनिशियलाइज करो वापस से पुराने ब्रांच को। तो एक बार फिर वापस से गिट इनिट कर दो आशित पुराने वाले रेपो को, राइट। इसमें डाउट है किसी को? अच्छा, मतलब कि इफ मैंने एक फाइल बनाई, मैंने उसे गिटहब पे पुश कर दिया, उसके करेक्ट। बाद फिर मैंने कुछ चेंजेस किए और फिर मुझे दोबारा पुश करना है तो मुझे दोबारा से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। यप, यही तो है कि डिफरेंट रेपो में तुम काम कर रहे हो, तो तुमको पता होना चाहिए कि किसको इनिशियलाइज किया है, किसको क्लोन किया है एंड मैं किस में काम कर रहा हूँ, राइट। हाँ, गिट क्लोन करो अपना डेमो अंडरस्कोर इंस्टा, उसमें डिफरेंट ब्रांच में कोड पुश करना है अपने को। गेट क्लोन। यस। बट एक्चुअली भी हमारे पास क्लोन हो रखी है ना वो, तो या हम लोग उसको नहीं। फिर रिमोट ऐड कर देंगे। क्लोन से हमारा जो भी इसमें कोड है रेपो में, हम्म, वो भी आ जाएगा और रिमोट ऐड करेंगे तो हमारा खाली कनेक्शन बिल्ड होगा, ना कि लोकल में आया, क्योंकि दोनों कर पेलोड सकते हो, हाँ करेक्ट है, दोनों कर सकते हो तुम। मतलब मैं क्लोन का इसलिए बोलता हूँ, क्लोन से इनको वो भी दिख जाएगा कि पुराना चेंजेस भी आ रहा है, राइट। तो दोनों कोई भी एक करके दिखा दो। ओ सॉरी, वेट, रिमोट ऐड ओरिजिन। ये कमांड्स देखो, कमांड्स मुझे पता है नए होंगे तुम लोग के लिए, इसके लिए मैं तुमको एक शेयर कर दूंगा डॉक्स, राइट। सो इसमें देखो, इसमें क्या होगा ना कि तुम ऐसे चीजें करोगे, तुम्हें ओके, पता चलेगा, तभी तुम मतलब एरर करोगे तभी तुम्हें पता लगेगा कि हाँ क्यों आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट, देखिए राइट। हम ये हमारा रिमोट ऐड इसलिए नहीं हुआ बिकॉज हमारा पहले से कनेक्शन बिल्ड है। ये करेक्ट, तो रिमोट ऐड ऑलरेडी करो, ऐड करने का ट्राई करो, इसमें ऐड हो रहा है क्या? हाँ, अभी अब ऐड करेंगे गिट ऐड। यस, करो। हो गया। हाँ हो गया ना ऐड तुम्हारा। हम्म, ठीक है। कमिट करने का ट्राई करो। उसमें स्टेज चेंजेस में आ रहा है क्या, ये एक बार चेक कर लेना। 103 के बाद 1985 नहीं आया अभी तो। 985 भी चेक करो एक बार क्यों नहीं आया। ls 985 वही डायरेक्टरी वाली तो गलती नहीं है, नहीं इसमें नहीं, शिफ्ट। हाँ। इसी में हम लोग git add। सेव है।
सुनो मैं बताऊं, तुम्हारा ही सिंक नहीं है अभी करंटली अपने करंट ब्रांच से, तो तुम क्लोन कर लो एक बार। मैं तो कह रहा हूँ, आ रहा है क्या यहाँ पे 985.cpp? हाँ, यहाँ वहाँ नहीं आ रहा था मेरा। हाँ तो एक बार उधर जाओ, वहाँ पे प्लस का सिंबल, हाँ इसको क्लोन कर लो, गिट क्लोन कर लो, करेक्ट। हाँ ठीक है, करेक्ट। इसमें यहाँ पे आ गया। हाँ अभी देखो ये आ यहाँ पे गया। है ना। हाँ अब इसमें इसमें आओ और इसको ऐड करो, गिट, हाँ उसमें डालो डेमो इंस्टा में, और उस वाले यहाँ एलएस करके उस वाले फोल्डर में जाओ, और फिर वहां से सारी चीजें करने का ट्राई करो। भैया आपने CD डेमो इंस्टा क्यों लिखा? हाँ क्योंकि वो देखो ना, ऊपर एक डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी आई है ना। हाँ, तो तो इसके लिए हम CD का सीडी मतलब CD। हम लोग, देखने के लिए ना, हाँ उस देखते हैं डायरेक्टर में इसमें जाने क्या के क्या लिए, है। करंट डायरेक्टर में जाने के लिए। ओके। यस, ऐड हुआ रहेगा आप देखो। नो, उसमें पुश करके लाओ ना आश्वित, यहाँ पे करो, देखो अपने चेंजेस ट्रैक करो एक बार। ब्रांच का इशू तो नहीं है। नहीं नहीं, ब्रांच का इशू नहीं है, गिट ब्रांच करो यहाँ पे। अरे स्मॉल ब्रांच लिखते हैं ना, गेट स्मॉल ब्रांच, बी का स्मॉल, मेन ब्रांच। भैया हर बार हम मेन ही क्यों चेक करते हैं? मेन क्योंकि अपना मेन ही आया होता है ना, हम अभी नई ब्रांच बनाएंगे तो नई ब्रांच दिखेगी। तुम एक काम करो अच्छा। आश्वित, उस पे जाओ, फाइल स्ट्रक्चरिंग पे जाओ एक बारी, एक फ्रेश फोल्डर बनाओ यहाँ पे, मतलब दूसरे फोल्डर को ओपन करो, वहां पे क्लोन करो वापस से। वो लोग देखो तुम्हारे दो दो फोल्डर बने हैं ना, तो कंपाइलर भी तुम्हारा जो वो है ना अपना सीएमडी भी कंफ्यूज हो रहा है, राइट। डेमो नाम से इसको ओपन करो, यहाँ पे क्लोन करो, यहाँ डिफरेंट ब्रांच बनाना, तो मेन वाला इशू नहीं आएगा तुमको वापस से। ओके ओके। अभी यहाँ पे पहले क्लोन करते हैं। हाँ डेमो इंस्टा को ही क्लोन करना है ना। ओके, क्लोन कर लिया। अब जन पहले गिट इनिट क्यों नहीं लिखा? गिट इनिट भी तो लिख सकते थे, हाँ डायरेक्ट गिट क्लोन से इनिशलाइज, क्यों स्टार्ट? हाँ इनिशियलाइज ही गिट पहले लिख सकते थे, या तो क्लोन भी पहले कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। गिट अच्छा, इनिट, ओके। गिट इनिट कर दो, अभी अभी गिट इनिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। गेट इन। करेक्ट। तुम क्लोन करने के बाद मतलब गेट इनिशियलाइज इसलिए करते हैं कि हम आगे जो भी कमांड्स यूज करेंगे ना, फॉर एग्जांपल गेट इनिट कब रोल में आता है मैं बताऊं, जो तुम्हारी गिट इग्नोर फाइल होती है ना, गिट इग्नोर अगर तुम अपने रेपो में ऐड किए होते हो, तो वो क्या करता है, उन फाइल्स को नहीं जाने देता है, क्योंकि वो गिट इनिशियलाइज्ड होता है, दैट्स व्हाई। अगर अभी भी तुम नहीं किए थे तो ऐसा कुछ इशू तो नहीं आता। एक काम करो आशु, तो कोई कोड कॉपी पेस्ट करो ना यहाँ पे, टाइप कब तक करोगे? वही एन वाला कर लीजिए ना, सी इन और सी इन आउट। बस हो और गया। फिर यहाँ पे सिर्फ सी आउट कर दो, सी आउट कुछ भी। हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सेव करो। यस सही होता अभी एडेड, हाँ अभी अपडेटेड है। अब करो गिट ऐड अपना, नहीं नहीं पहले रुको, गिट ब्रांच करो, डिफरेंट ब्रांच बनाएंगे इस बारी। और ये कोड कॉपी कर लो, है ना। अभी पहले ऐड करेंगे भैया। हाँ नहीं ऐड नहीं करो, पहले डिफरेंट ब्रांच पे जाओ, गिट गिट चेकआउट लिखो, गिट चेकआउट। गिट ब्रांच में तुम्हारा कौन सा ब्रांच आया अभी? अभी कोई कुछ नहीं ब्रांच है। नहीं। ब्रांच आनी चाहिए ना भाई। गिट ब्रांच नहीं। चेकआउट, नहीं नहीं गिट ब्रांच करो, गिट ब्रांच आएगी तब तुम गिट चेकआउट
-b और फिर ब्रांच का नाम लिखोगे, नई ब्रांच का नाम। अभी ब्रांच पहले नहीं आ रहा। ब्रांच चेक करेंगे। हाँ पहले ब्रांच गिट ब्रांच करो, सिर्फ गिट ब्रांच। देखा नहीं आ रही। ब्रांच आनी चाहिए, एक बार ऊपर जाओ। ऊपर ऊपर फाइल पे, जहाँ पे तुम्हारा मेन फाइल दिखती है, फाइल स्ट्रक्चर जहाँ दिखती है। यस, तुमने डेमो इंस्टा क्लोन किया है ना, फिर मेन पे हमारी ये देखिए यहाँ पे। लेकिन ये डेमो इंस्टा और ये दोनों अलग अलग फाइल है क्या? अभी एक्चुअली इसको हम लोग ये कह रहा था हम्म, कि हम इसको क्लोन नहीं ना कर रहे हैं, हम तो 1003 को क्लोन कर रहे हैं नहीं नहीं, और क्लोन तो क्रिएट कर रहे हैं। रेपोजिटरी को कर रहे हैं, क्लोन तो डेमो इंस्टा को किया है। सुनो हाँ डेमो इंस्टा किए हैं अभी होएगा। हाँ और उसमें डेमो इंस्टा में 1003 आया है, यस, तो गिटहब पे ऐसा तो कुछ ब्रांच है नहीं, ब्रांच, वो 789। हाँ अब आया ना। अब हाँ आएगा देखिए। क्या बोल वहां रहे पे थे नहीं, अभी आदित्य? हम लोगों ने न्यू किया है ना, न्यू 789 अभी हम लोगों ने न्यू फोल्डर बनाया है, यहाँ पे इसीलिए नहीं है। अब हम लोग अभी हम लोगों ने जो इससे पहले पुश किया था इसको, वो मेन ब्रांच के थ्रू पुश किया था, राइट। मेन ब्रांच ये से पुश किया था, फिर हमने नया ऐड करने का ट्राई किया था, बट अपने को कॉन्फ्लिक्ट आया था, राइट। फिर हमने यहाँ पे अब दूसरी, हमने क्या किया, वापस से क्लोन करा, एंड हम दोबारा से क्या कर रहे हैं, अब दूसरी ब्रांच बना के उसमें कोड ऐड करेंगे, है ना। तो अब गिट तुम्हारा ये ऐड करते चेंजेस आ रहा है, करेक्ट है। हैं, गिट अब ऐड, तुम, पहले अब गिट हाँ ऐड करते हैं। हाँ अभी देखिए स्टेजेस में चला गया ये। हाँ, अब पुश करके दिखाओ इनको, अब गिट कमेंट करना। कमिट, पहले हम लोग ब्रांच चेंज कर लेते हैं, वैसे कोई इशू नहीं। कमिट न्यू, अब हम लोग ब्रांच चेंज करते हैं। स्टेजिंग एरिया में चला गया। हाँ गेट ब्रांच, अब हमने डाल दिया माई ब्रांच। अब हमारी पहले मेन पे था, अब हमारी खुद की अलग ब्रांच बन गई है। अब हम लोग इसको पुश करेंगे। इससे पहले आप लोग ने नोटिस किया होगा, जब हमने पुश किया था यहाँ पे हमने डायरेक्ट आ गया था कोड ना। अब हम यहाँ पे पुश करेंगे, गेट पुश ओरिजिन माई ब्रांच। माई ब्रांच। डाउट है मुझे। हाँ पूछो। इसमें अब जब हम पुश करेंगे, हमने ब्रांच चेंज कर दिया है, तो जो दोनों फाइल्स हैं 1003 और 789, दोनों ही फाइल्स माई ब्रांच पे जाएंगी, मेन पे दोनों ही नहीं जाएंगी। नहीं, मेन पे तो हमारी ये पहले से है ये मेन पे तो 103। पहले से है ना। ये हमने जब क्लोन किया हम्म था तो जो भी कोड था हमारे इसमें लोकल में आया था, राइट। हम्म यस, एंड जब हम इस बार ऐड कर रहे हैं तो देखो 1003 वाला तो पहले से कोड पे था, हमने उसको पुल किया, मतलब हमने क्लोन किया तो आया। अब हम उसमें ऐड ऑन हमने दूसरी फाइल की है, आई थिंक 985 हम्म 789.cpp है, ये वाली फाइल हमारी अब ऐड हुई है, एंड ये हम दूसरी ब्रांच से, मेन ब्रांच मतलब एडमिन के पास राइट है उसमें कोड पुश करने का, है ना। अब है ना, ये आश्रित एडमिन है तो इसने पुश किया तो इसका डायरेक्ट मर्ज हो गया। अब ये दूसरी ब्रांच से करेगा ना, तो एक बार देखना, पुश करो दूसरी आश्रित एक ब्रांच बार। मतलब आप ऐसा एक समझ और लो, दूसरी डाउट, ब्रांच मतलब कोई और है, मतलब अनदर पर्सन, थर्ड एक और पर्सन। दूसरा डाउट। डबल, हाँ पूछो। डाउट। इफ 1003 वाली फाइल के अंदर मैं कुछ चेंजेस करती और हम्म। फिर मैं इसको पुश करती, तो 1003 वाली फिर भी मेन ब्रांच में जाती कि माई ब्रांच में जाती? नहीं, वो आप दोनों में ऑप्शन है ना, अगर आप मेन ब्रांच, अगर आप ब्रांच नहीं चेंज करते तो आपका मेन ब्रांच में जाता, बट अगर आप ब्रांच हम्म चेंज कर रहे हो तो उस वाले ब्रांच में उसका जाएगा चेंजेस, राइट। बट जैसे नहीं, अगर मतलब जैसे उसमें उसमें अगर आपने कोड चेंज किया है ना, तो पहले पहले जो दूसरी ब्रांच बना करके कर रहा है, उससे पहले उसको पुल लेना पड़ेगा। हाँ अगर वो पुल नहीं लेगा तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। नहीं समझ आ रहा। ठीक है, एक काम करो आशित, इस वाले कोड को पहले पुश करो, फिर मैं 1003 में भी चेंजेस करा के उसको भी पुश कराता हूँ। ओके भैया। यस, वन बाय वन। पुश अब किया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये डायरेक्ट नहीं आएगा, ये बोलेगा, ये यहाँ पे मेन पे क्लिक करो, यहाँ दोनों ब्रांच तुम्हारे दिखेंगे, जो मेन इसके नीचे है ना, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ अभी पे तुम्हारे ब्रांचेस अभी है माई ना। माई ब्रांच नहीं है क्योंकि अभी वो मर्ज नहीं हुआ है उसका कोड। अच्छा तो मर्ज एक बार, हाँ ये ऊपर आया ना, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, इस पे हाँ। जाओ, ये ऊपर ऊपर, हाँ यार। हम्म,
हाँ तो देखो यहाँ पे जो चेंजेस हमने करके दिया, एक बार रुको रुको रुको, यहाँ पे रुको, डायरेक्ट मर्ज मत करो, एक बार दिखा दो मेरे को, ऊपर जाओ हल्का सा, एक सेकंड, तुम्हारे थोड़ा जूम कर सकते हो क्या? हाँ रुको रुको, अब तुम यहाँ एक ऑप्शन होगा, क्या बोलते हैं उसका, रिव्यू चेंजेस, रिव्यू जैसा कुछ करके, प्रीव्यू। हाँ प्रीव्यू, देखो नहीं नहीं, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, नीचे है, नीचे मैंने देखा ना, देखो जो भी तुमने चेंज किया ना, तुम्हारे दूसरे ब्रांच से, फॉर एग्जांपल ये दूसरा डेवलपर है जो माई ब्रांच से कोड कर रहा है, ये दूसरा डेवलपर है, इसने कुछ चेंज किया, तो अभी ये तुम देखोगे एंड तुम अप्रूव, सिंस आश्वित अभी एडमिन है तो वो अपने आप को ये क्रिएट पीआर करेगा और खुद मर्ज भी कर देगा। बट अगर फॉर एग्जांपल आश्वित के अलावा कोई और, फॉर एग्जांपल रुद्राक्ष होता, इसने इसकी ब्रांच का पुल लिया होता, कुछ कोड करता है एंड पीआर रेज करता है, ऐसे पुश करता, तो आश्वित इसको रिव्यू करता, अगर उसको अच्छा लगता तो फिर वो मर्ज करता, अदरवाइज नहीं करता, उस पर डिपेंड करता है, राइट। बट सिंस आश्वित अभी एडमिन है तो ये क्रिएट मैं ड्राफ्ट फुल पुल कर रिक्वेस्ट देता, करो। हाँ ड्राफ्ट पुल कर देता अगर मुझे अच्छा नहीं लगता तो। मतलब हाँ जैसे कुछ ऐप है और मैंने उसमें कोई अपडेट किया है, तो मैंने जो भी कोड किया है वो पहले मतलब एडमिन चेक करेगा कि क्या इसने सही अपडेट किया है या ये कुछ भी कर करेक्ट। रहा है, उसके बाद ही करेगा, राइट? हाँ तो राइट अपना गिट का मैंने बताया ना ट्रैक चेंजेस, तो ऐसे चेंजेस हाँ, तुम ट्रैक ठीक कर है। सकते हो, राइट। ओके भैया, भैया थैंक यू। हाँ ये जो पीआर रेज करते हैं हम, ये चेंजेस करके पुश कर ब्रांच में पुश करने के बाद पीआर रेज करते हैं कि पहले पीआर रेज करते हैं फिर ब्रांच में पुश करते हैं? क्रिएट पीआर तो तुम जब चेंजेस तुम्हारे उस ब्रांच में चले जाएंगे ना, तब तुम पीआर रेज करोगे, एंड पीआर जो आप रेज करते हो वो एडमिन मतलब जो ओनर होता है उस ब्रांच का उसको दिखता है। एक तो बार पीआर क्रिएट, रेज क्यों? अच्छा बोलो ठीक बोलो, है, बता लीजिए। बोलो बोलो मैं नहीं बोलो। पूछ रही थी कि पुल रिक्वेस्ट क्यों करते हैं रेज, मतलब इसका क्या काम होता है? पुल रिक्वेस्ट, हाँ देखो, क्योंकि सिंस तुम कोड बेस के ओनर नहीं हो, राइट, आप कोड हम्म बेस के ओनर नहीं हो, तो आपने वो चेंजेस अपने में किए, अब आप चाहते हो कि मेरा कोड उसी में मर्ज हो जाए, तो आप जो एडमिन होता है उसके पास पीआर रेज करते हो कि मेरा ये जो कोड है, मेरे चेंजेस है, इसको रिव्यू करो, है ना, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मर्ज कर देना, नहीं अच्छा लगेगा तो आप डिक्लाइन कर देना, एक बार क्रिएट पीआर करो, यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करो। हाँ अब मर्ज का आएगा, है ना, तुमने कर लिया, अब यहाँ पे आएगा कि मर्ज करना है क्या, तो सब कुछ, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यहाँ पे अब ये आश्रित के पास रहेगा कि इसने हम्म, आपका चेंजेस देखा, अब इसको मर्ज करना है कि नहीं, मर्ज करना है तो समझ मर्ज करेगा, गई। अदरवाइज नहीं करेगा, राइट। देखो ये थोड़ा ओके। मतलब फर्स्ट टाइम कॉम्प्लिकेटेड होता है, कई लोग गलतियां करते हैं, एंड वाइल लर्निंग गलतियां करनी भी चाहिए, तो ये थोड़ा मतलब ऐसे टेक्निकलिटीज हैं, राइट। सो इसको स्टेप बाय स्टेप एक बार अपने आप से करेंगे ना अपन, तो और अच्छे से आएगा। कर दो, मर्ज कर दो, अभी देखना मेन ब्रांच में आ जाएगा चेंजेस। हाँ कंफर्म मर्ज करो। लेकिन ब्रो ये तो है ना, वो मतलब कोड के जो है मेन ब्रांच के यही है ना, तो फिर इनसे क्यों इतना रिक्वेस्ट वगैरह? क्योंकि इन्होंने दूसरी ब्रांच बनाई ना, अपनी मेन ब्रांच में कोड थोड़ी ना डायरेक्ट आया, ये अपनी मेन ब्रांच में भी अपने आप डायरेक्ट कोड पुश कर पा रहे थे, बट अगर कोई और होता और मेन ब्रांच में डायरेक्ट कोड पुश करता तो उसको एरर आता ना, उसको। अच्छा, तो मतलब हाँ ये ब्रांच चेंज करने की वजह से हाँ ब्रांच चेंज, ब्रांच, उसी में। ब्रांच चेंज मतलब डेवलपर चेंज ऐसा समझ सकते हो आप, अगर हाँ ब्रांच। अच्छा, मतलब आप दूसरे डेवलपर की तरह एक आ राइट। गए हैं। हाँ अच्छा। अभी अभी हम लोग यहाँ पे जब अपने कोड पे जाएंगे ना, तो आप देखिए हम्म, यहाँ पे आ गया, बट ये जो कोड है ना, ये हमारे मेन, ये हमारा उसमें आया, माई ब्रांच में आया है। माई ब्रांच में पहले हम लोगों ने इसको हाँ, किया था, कमिट क्लोन किया था, देन फिर इसके बाद हमने इसको ऐड किया है। अब मेन ब्रांच में आया। हाँ मेन ब्रांच में भी आ गया, क्योंकि वो तो मेन है ना, क्योंकि मेन वाले ने कर दिया कि भाई अब तुम मतलब मास्टर ब्रांच में चली जाए, मर्ज हो जाए, ये ना भैया। हम्म हाँ, देखो क्या होता है मैं बताता हूँ, तुम्हारा जो मेन ब्रांच है ना, तुमने वहां से कोड लिया, जो भी कोड लिया, फिर उसको तुमने ब्रांच चेंज किया, तो तुम्हारा पूरा चेंजेस अब चेंज वाली ब्रांच में आके फिर सारी चेंजेस उसमें चले जाएंगे। जब तुम मर्ज कर रहे हो तो जो भी तुम्हारे ब्रांच नए वाले ब्रांच में है ना, तुम जैसे मेन ब्रांच पे डायरेक्ट जाके नई ब्रांच बनाओगे ना, तो जो भी मेन ब्रांच पे होगा वो तुम्हारे उस वाले ब्रांच में चला जाएगा, राइट। एंड जब तुम वहां से कोड पुश कर रहे हो, तो और यहाँ पे पीआर क्रिएट हुआ एंड आश्रित ने मर्ज किया, तो जो भी तुम्हारा चेंज वहां से आया होगा वो ऑलरेडी मेन ब्रांच पे चला जाएगा, राइट। सो जो इसने क्या किया था, देखो मेन ब्रांच का चेंज भी उस वाले ब्रांच में, एक बार ब्रांच चेंज करो आश्रित वहां पे, मैं बताता हूँ इसको। हाँ
जाओ माई ब्रांच पे जाओ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो क्या हुआ। आश्विन ने मेन ब्रांच में 1003.cpp था, आश्विन ने क्लोन किया, इसको क्लोन किया तो 1003 वाला 1003 वाला आया, एंड उसमें 789 वाला ऐड किया, इसमें ऐड किया नई ब्रांच में, ठीक है। अब जब नई ब्रांच में ऐड करके इसने पुश कर दिया तो ये दोनों फाइल्स इसके नई ब्रांच में आई, एंड चेंज एक्स्ट्रा क्या था 789, क्योंकि 1003 तो ऑलरेडी मेन में है ही, वो तो आया ही था हमारे इस ब्रांच में, तो वो तो माई ऑलरेडी ब्रांच में 789 बस किए थे ना, 789 किए थे, लेकिन जब क्लोन किए थे तो ये 1003। हाँ 1003 तो आया ही था ना, क्योंकि देखो मैं मेरी विंडो पे आओ, मैं बताता हूँ। नहीं, वो जैसे एकदम से हम बनाए थे ना, जो माई ब्रांच 789 जब बनाए तब हम मेन ब्रांच बनाए ना, मेन ब्रांच में फिर पुश कराए थे 789, तो ये 1003 कहाँ से आ गया? ये तो मेन ब्रांच, देखो मेरी विंडो पे आओ एक बार, आशित एक बार तुम प्रेजेंट करना हटाओ, देखो यही तो मैंने बताया था ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट में, देखो तुम्हारे साथ क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तुमने जब इस ब्रांच से एक नई ब्रांच बनाई तो इसमें जो कोड था वो आएगा ना इसमें, तभी तो तुम उसके टॉप पे चेंजेस करोगे, राइट। तुम चेंजेस करके फिर वापस उसमें मर्ज करोगे, अगर ये कोड नहीं आएगा तो तुमको कैसे पता चलेगा। जैसे ये वाला एक केस था, मतलब मैंने एग्जांपल इसलिए लिया था कि अगर इसने इसको क्लोन किया इसमें, अगर इसके चेंजेस नहीं आएंगे तो इसके टॉप पे ऐड क्या करेगा ये, राइट। तो जो भी फॉर एग्जांपल इसने अपना चेंजेस ऐड कर दिया, अब कल को कोई यहाँ से वापस से क्लोन करता है तो इस पे जो भी चेंजेस इसने ऐड किए थे वो सारे चेंजेस इसके ब्रांच में जाएंगे, तभी तो ऐड करेगा उसमें चेंजेस। बोलो। अच्छा, यस तो मतलब इसमें जितने भी चेंजेस रहेंगे वहां पे, तो वो सारे उसके लोकल उसमें आ जाएंगे, यस करेक्ट, लोकली आ जाएंगे। हाँ यस हाँ रुद्राक्ष। मैं कह रहा हूँ जैसे मान लेते हैं मेरी फोन पे का नौकरी लगी, ठीक है, सपोज एक सिनेरियो लग गई, तो मुझे बोला कि किसी पर्टिकुलर चीज़ पे मुझे अपडेशन करना है, तो मुझे कोड मिला, तो पहले मैंने सारे कोड को पुल कर लिया, ठीक है, मतलब जो भी मेरे पास था अवेलेबल, मैंने उस सारे कोड को क्लोन किया। क्लोन करने पे फोन पे का पहले जितना डाटाबेस था सब मेरे पास आ गया, जितना भी कुछ था इन्फॉर्मेशन जो भी वर्जन था, 1 मेरे में पास था आ वो गया। आ गया, हाँ ठीक हाँ। आ गया। अब मुझे था कि फोन पे का लोगो सिर्फ चेंज किया, मैंने मान लीजिए जो भी चेंज करना था मैंने चेंज किया। जब मैं फिर से पुश करूंगा तो जो मेरा कोड मैंने पुल किया था, मेरा कोड उसके साथ पूरा जाएगा या फिर सिर्फ मेरा कोड जाएगा? देखो जो तुम वापस से कर रहे हो ना, वो जब हाँ तुमने यहाँ से जब तुमने लिया था चेंज, तो जो चेंज यहाँ पे था मतलब पहले कोड था वो ऑलरेडी तुम्हारे ब्रांच में तो है ही, हाँ जो एक तुम एड ऑन करके भेज रहे हो ना, जा सिर्फ हाँ वही रहा है, लेकिन हाँ तुम्हारी ब्रांच में जो था वो भी रहेगा और जो तुमने चेंज किया वो भी रहेगा, हाँ समझे। ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा इंडिपेंडेंट कोड तो उतना वर्क नहीं करेक्ट, करेगा ना, हाँ। तो मतलब सब लेकिन जाएगा। तुमने अपनी ब्रांच किससे क्रिएट करी थी, मेन ब्रांच से क्रिएट करी थी ना, तो मेन ब्रांच में हाँ जो भी कोड होगा वो तुम्हारे कोड में आएगा, तुम्हारे ब्रांच में आएगा, राइट। ठीक है, इसीलिए वो 103 गया, राइट, 1003। करेक्ट, वो गया नहीं है, गया सिर्फ मतलब 7, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो इससे इल्यूजन क्रिएट हो रहा है थोड़ा, देखो क्या हो रहा है, 789.cpp इसने आशित हाँ ने ये मैंने बनाया। भेजा, हाँ ठीक है, हाँ। हाँ लेकिन जब हाँ तुमने यहाँ से नई ब्रांच बनाई थी मेन ब्रांच में, तो मेन ब्रांच में 1003.cpp था, ये मैंने इसको पुल चेंजेस किया। इसमें थे, तो जो तुम इसमें हाँ आया था तो 1003 तो ऑलरेडी आएगा ही, तुमने जो भेजा और चेंज किया वो ये गया सिर्फ ये 789, ये 1003 हाँ पहले भी मेन ब्रांच में था, अभी भी मेन ब्रांच में है। एक्स्ट्रा ये हाँ हुआ कि जब तुमने मेन ब्रांच से एक्स्ट्रा ब्रांच बनाई तो तुम्हारे ब्रांच में भी ये ब्रांच ये वाला कोड आ गया। अब सानवी का ठीक है। डाउट, सानवी अगर अच्छा आप करोगे यहाँ पे इस आओगे, आप कह रहे थे ना कि इसमें चेंज करूंगा, तो आप करोगे तो हाँ यहाँ पे इसमें जो चेंज होगा वो भी चेंज फिर जाएगा, लेकिन जो एज इट इज कोड जो आया था वो एज इट इज इसमें रहेगा, जो चेंज करोगे वो जाएगा वापस। अब कल को कोई यहाँ पे क्लोन करेगा या कुछ भी करता नहीं है, नहीं भैया, वो तो मैं समझ गई, बट मैं पूछ रही थी कि 1033 पहले मेन ब्रांच में ऑलरेडी रिपोजिटरी में थी, मैंने उसे क्लोन किया, मैंने उस फाइल में कुछ चेंज किया और मैंने ब्रांच चेंज करी। हाँ अब मैं करेक्ट, दूसरी ब्रांच में पुश कर रही हूँ रिपोजिटरी में, तो जो मेरा 1033 है, मतलब 1003 है, वो कौन सी ब्रांच में जाएगा? मेन ब्रांच में जाएगा कि जो मैंने एट द ब्रांच एंड बनाई है उसमें?
देखो सबसे पहले तो आपके ब्रांच में तो आया ही है, ये एग्री करते हो हाँ सानवी? हाँ। हाँ। अब आपकी ब्रांच में आया, आपने कुछ चेंज किया, तो एट द एंड आप किसको भेज रहे हो? मेन ब्रांच को भेज रहे हो, तो चेंज मेन ब्रांच में जाएगा। हम्म। यस, तो मेन ब्रांच में गया ना जो भी चेंज किया था आपने। अच्छा। यस, देखो ये ठीक है। थोड़ा मतलब देखो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट ना, ये मतलब ऐसा है कि बहुत मतलब टीसीएस में मैं बताऊं बहुत सारे अभी अपने साथ जो अपना सेशन डीएसए का स्टार्ट होने वाला है ना, टीसीएस के बहुत सारे एम्प्लॉयज भी ज्वाइन करने वाले हैं अपना डीएसए वाले सेशन में। बट मैं मतलब बैठ कर रहा हूँ, बहुत सारे 90% ऑफ डेवलपर्स को मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना नहीं आता है, एंड ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो आई नो कि फर्स्ट टाइम जिसको लगेगा वो थोड़ा ऐसा कंफ्यूज होगा, बट वर्किंग 2-3 बार ऐसे खुद से करोगे एंड अपने सेशन में, इसीलिए हमने हर एक सिनेरियो क्रिएट, मैंने आश्वित से सेशन के पहले ये डिस्कस किया था कि वो वाले सिनेरियोज भी ऐड करना जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आए, तो इसलिए हमने कॉन्फ्लिक्ट्स ऐड किया, राइट? तो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो वेल एंड गुड, मतलब उससे हमको सीखने को मिलेगा, राइट? सो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मतलब डॉक्यूमेंटेशन में भेजूंगा, एक बार आप ट्राई करो, है ना, क्रिएट करो, मतलब प्लेग्राउंड की तरह खेलो, एंड इन केस कहीं भी स्टक हो रहे हो तो पिंग मी, हम लोग कनेक्ट करके एक बार उसको भी रिजॉल्व कर लेंगे, राइट? बट ये हाँ, या तो ये इस रेपो पे एक बार करके देख लो, राइट? एक और मुझे डाउट है, हाँ पूछो। मुझे भी। फॉर्क कब करते हैं? और मतलब ऐसा होता है क्या कि अगर मैं बिना फॉर्क करे डायरेक्ट, जैसे मैंने आश्रित भैया की रिपोजिटरी से डायरेक्ट कोड को क्लोन कर लिया अपने लोकल में, हाँ, और फिर मैं उसको पुश कर रही हूँ, तो मैं पीआर नहीं रेज कर सकती? ऐसा कुछ मुझे फॉर्क करना पड़ेगा पहले अपनी रेपो में, फिर अपनी करेक्ट। रेपो से क्लोन करके पुश करना होगा? तो देखो पहली बात कि अगर फॉर्क नहीं किया आपने तो आप पुश भी नहीं कर पाओगे सारी ब्रांच में, बिकॉज आपको एक्सेस राइट्स नहीं है। अगर आश्रित अपने रेपो में आपको एक्सेस देगा तब आप कर पाओगे, राइट? अदरवाइज आपको अच्छा। क्या होगा, हाँ ये मैं बोल रहा हूँ, देखो क्या है कि ये आश्रित है ना, ये आश्रित है, एंड इसने ये रेपो एक बनाई ग्लोबल कंट्रीब्यूशन के लिए। आपको क्या करना रहेगा, इस वाले रेपो को पहले अपने में फॉर्क करो, ठीक है? तो पहले जो भी ऐड कमिट एंड पुश करोगे अपनी इस वाले ब्रांच में करोगे, करेक्ट? एंड इस वाले ब्रांच में जो आपने क्लोन किया था ये वाली ब्रांच पे जो भी चेंज करोगे, तो फिर आश्रित को पीआर यहाँ से रेज करोगे, यहाँ पे भी एक आपको आएगा क्रिएट पीआर, ठीक है? ये क्रिएट पीआर करोगे तब आश्रित को विजिबल होगा एंड फिर वो मर्ज करेगा, राइट? बेसिस कि आपका कोड कैसा है, राइट? आप जो भी कर ओके। रहे हो ना वो आप अपने लोकली में गेम खेल सकते हो, बट आप डायरेक्ट किसी और, अगर ऐसा होने लगा कि किसी और के रेपो में डायरेक्ट चेंजेस होने लगे, फिर तो ये मतलब गड़बड़ है ना, फिर ये इशू है ना, करेक्ट? और को ओके। पीआर क्या है? फॉर कुछ नहीं है, अगर आशुत अभी एक लिंक शेयर करेगा ना, तो उसको उस पर सबसे पहले एक ऑप्शन आएगा फॉर्क। तो फॉर्क का मतलब ये होता है किसी और का कोड, अगर हम उस कोड उस किसी और के कोड बेस में हम कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, तो उसको हम सबसे पहले फॉर्क करेंगे, एंड फॉर्क करके वो हमारे में सेम टू सेम आ जाएगा, फिर हम अपने में चेंजेस करेंगे जो अभी हम लोग कर रहे हैं। तो फॉर्क ये है कि किसी और का कोड हमारे गिटहब में, किसी और के गिटहब से कोड हमारे गिटहब में आया, ऐसा। तो पहले उससे एक टाइप का परमिशन लेते हैं कि कर यस, सकते हैं। हाँ, समथिंग लाइक और पीआर रेज करना। दैट। पीआर रेज करना अच्छा, भी बताया पीआर था ना, मतलब कि पुल पीआर रिक्वेस्ट। की जैसे, हाँ, कि रिक्वेस्ट पूछना कि ये देखिए सही है कि नहीं कोड, क्या यस, इसको किया जा सकता है करेक्ट, उसको। हाँ, करेक्ट। पीआर का फुल फॉर्म क्या है? पुल रिक्वेस्ट ना बताया तो। फुल रिक्वेस्ट। यस, रिक्वेस्ट कर रहा है ना कि हमारा कोड मर्ज कर दो। यस, सो ये था, इसमें हमने एरर भी रिजॉल्व करने का ट्राई किया। इसमें किसी को डाउट है क्या? या हाँ, एक चीज बचा रह गया, एक सेकंड देना है, कॉल आ रही है, 1 मिनट बस। शॉप के लिए, सो देखो जीएस शॉप का मैं तुमको दिखाता हूँ, सीधे इनकी वेबसाइट पे ले सकता हूँ। जीएस शॉप, तो देखो गर्ल्स ट्रिप समर ऑफ कोड इवेंट अभी भी लाइव है आई थिंक,
हाँ अभी भी लाइव है, इस पे तुम अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत अच्छा इवेंट है, मतलब इसमें बहुत लोग पार्ट लेते हैं इंडिया लेवल पे, तो बहुत लोग, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ कितने लोग, देखो 43K प्लस रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। इसमें पार्ट लोगे, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, यही सेम फ्लो गिटहब के बेसिस पे होता है, राइट। तो इसमें किसी कोड में तुमको कुछ चेंजेस करके एंड पुश करना होता है, इसमें तुमको मेंटोर भी मिलता है, एडमिन भी मिलता है, राइट। सो तुमको क्या करना है, इसमें अभी तो अप्लाई कर सकते हो, है ना। सो इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ये है ना तुम्हारा 3 महीने तक चलता है, 3 मंथ लॉन्ग ओपन सोर्स प्रोग्राम है, ठीक है। सो इसमें तुमको क्या करना रहेगा कि तुमको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा HTML CSS या जो भी टेक स्टैक तुमको आता है, तुम उसको डालो एंड तुमको उस पर थोड़ा सा कोड कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तुमको एक मेंटोर भी मिलेगा जो तुमको गाइड कर रहा होगा, राइट। एंड अगर तुम कोड कंट्रीब्यूट करते हो तो ये लोग बहुत सारी चीज़ें तुमको देंगे, स्वैग्स भी देते हैं, सर्टिफिकेशन देते हैं, बहुत सारी चीज़ें, राइट। सो इसमें तुम पार्ट ले सकते हो। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये है कि तुम यहाँ पे जब अप्लाई नाउ क्लिक करोगे ना, तो तुमको एक ऐप डाउनलोड करने को बोलेगा, बिकॉज ये जो स्मार्टली वेंचर्स है ना, ये लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरे को स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो इनके ऐप पे जाओ, अपनी डिटेल्स शेयर करो, फॉर एग्जांपल आपकी डिटेल्स, मतलब प्रोफाइल वाली डिटेल्स, है ना। अपना टेक स्टैक डालो, टेक स्टैक वही डालना जिसपे थोड़ा बहुत आपका गिट पे कोड हो, नहीं होगा तो किसी एक का, मतलब मेरे से एक रेपो ले लेना, उस पर कुछ कोड्स हैं वो मैं समझा भी दूंगा, है ना। वो कोड्स के बेसिस पे आप पार्ट लो एंड वो तुम्हारा रिव्यू होगा, ठीक है। एक बार जो टेक स्टैक डालते हो गिटहब पे गया, वो तुम्हारा रिव्यू होगा एंड वंस यू आर सेलेक्टेड देन तुमको 3 मंथ के लिए एक मेंटोर मिलेगा जो तुमको गाइड करेगा। एंड ये रियली बहुत इम्पैक्टफुल होता है कमिंग टू, मतलब जो करंट मार्केट सिनेरियोस है ना, उनमें बहुत सारे स्टूडेंट से आगे निकलने के लिए एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो यू हैव टू पार्ट, मतलब तुमको लेना चाहिए, यू हैव टू टेक पार्ट इन दिस। सो देखो इसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूट, एज अ कंट्रीब्यूट तो तुम अभी पार्ट लो। एडमिन का तो खत्म हो गया है, स्लॉट्स खत्म, मतलब टाइमलाइन रीच हो गई है। मेंटोर्स के लिए भी आई डोंट थिंक, हाँ कोई भी इसमें ले सकता है पार्ट। यस कोई भी ले सकता है, मतलब गर्ल्स ट्रिप तो ऐसा मत सोचना है कि सिर्फ लड़कियों के लिए है, ये सबके लिए है ना। इट इज ओपन टू एवरीवन, है ना। मैं तुमको एक रेफरल कोड भी दे दूंगा, उसके बेसिस पे आई थिंक थोड़ा मतलब तुम्हें प्रायोरिटी मिल जाएगी, राइट। सो एज अ कंट्रीब्यूटर अभी तुम पार्ट ले सकते हो। आई थिंक प्रोजेक्ट एडमिन का तो खत्म हो गया है ना। इस साल तुम एज अ कंट्रीब्यूटर पार्ट लो, नेक्स्ट ईयर से तुम एज अ मेंटोर या मतलब एज अ मेंटोर भी पार्ट ले सकते हो, कैंपस एम्बेसडर भी पार्ट ले सकते हो, राइट। सो कंट्रीब्यूटर ऐड कर दो, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, राइट। सो एक बार इसमें पार्ट लो एंड मैं रेफरल कोड शेयर कर दूंगा आप लोगों को। सो इसमें अगर किसी को कोई ऐसा डाउट रहेगा तो मेरे से रीच आउट कर लेना, मैं तुमको करा दूंगा, उसमें अप्लाई करा दूंगा, राइट। तो इस इवेंट के देखो ये इवेंट चल रहा है इसलिए हमने एक सेशन रखा था, वहाँ पे भी तुमको ऐसे बहुत सारे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट दुनिया भर की चीज़ें आ रही होंगी, बट यस यही प्रोसेस है रिजॉल्व करने का जो हमने थोड़ा बहुत आज देखा, राइट। एंड ये वाला प्रैक्टिस देखो, लास्ट टाइम जो सेशन हुआ था ना वो पूरा हम लोगों ने किया था, ये अपना सेशन पूरा मतलब हमारे स्टूडेंट्स ने पूरा प्रैक्टिकल डेमो दिया, फॉर एग्जांपल आश्रित ने दिया, बाकी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। सो थैंक्स टू ऑल जिन्होंने पार्ट लिया। किसी को डाउट है क्या इससे रिलेटेड एनीथिंग, मतलब कोई चीज़ देखो थोड़ा बहुत ऐसे कोई देखता है ना तो कोई भी कंफ्यूज होता है। हाँ, तो इसके अलावा अगर किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क, मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब जल्दी को बहुत सारे एचआर तुम्हारी देखते हैं ना, तुम अपस्किल कर रहे हो अपने आप को, तो आपको रीच आउट करते हैं फॉर इंटर्नशिप्स एंड अदर थिंग्स। तो तुम मतलब कर सकते हो, इसको हाईलाइट कर सकते हो कि हाँ हमने गिटहब सीखा, राइट। तो यस लेट्स रैप अप दिस सेशन, अगर किसी को डाउट नहीं है तो, राइट। तो थ्योरेटिकली तो समझ में आ गई है, अब प्रैक्टिकली करूँगा प्रैक्टिकली तो तो फिर हाँ करके ही आएगा, सिंपल है वो, है ना। मुझे तो अगर कुछ ठीक है, डाउट वगैरह होगा तो फिर यस यस किसी को भी डाउट हो यू कैन मतलब रीच आउट, हम बैठेंगे। अब देखो हम जो भी करते हैं एकदम प्रैक्टिकल करते हैं, सामने आके बग्स भी सामने रिजॉल्व करते हैं, सारी चीज़ें, मतलब तो यही लर्निंग का प्रोसेस है, तो हमें बग रिजॉल्व करना सीखना पड़ेगा। एंड वो तभी होगा जब हम लाइव करें कोड। हम रिकॉर्डेड पे थोड़ा कम बिलीव करते हैं, बिकॉज रिकॉर्डेड से तो वो बनी बनाई चीज़ें आ जाती है ना कि हाँ मतलब ये फ्लो एकदम ऐसे ही, बट हमने बहुत सारी चीज़ें अभी सीखी कि ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो ये सब डाउट्स आने चाहिए एज अ इंजीनियर, राइट। सो ऐसे ही हम ग्रो करेंगे, राइट। सो
ट्राई करो सब लोग, किसी को भी डाउट होगा या एनीथिंग फॉर मी यू कैन मतलब रीच आउट टू मी। ठीक, तो let's wrap up this session and thank you so much for joining everyone.